चलिए स्टार्ट करिए। जो मेरा टॉपिक है वो है नंबर रिकॉर्डिंग ऑफ द इजिप्टियंस एंड ग्रीक्स और इसी में इसमें जो मुझे मिला है वो है हिस्ट्री। हम्म। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ हाँ। ओके सर। ये है सर नंबर रिकॉर्डिंग ऑफ इजिप्टियन एंड ग्रीक्स और इसमें है हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ इजिप्टियंस एंड ग्रीक सिविलाइजेशन। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ग्रीक्स थे उन्होंने सबसे पहले जो है मैथ्स को एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया था अपने उसमें। तो इसमें इनकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ने से पहले जो इनकी नंबर रिकॉर्डिंग थी उससे पहले इसमें हिस्ट्री में बताया गया है कि किन कंडीशंस के अंदर जो है इजिप्टियन और ग्रीक सिविलाइजेशन जो है डेवलप हुई है। और इसके लिए जो हेरोडोटस है जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, उनकी जो बुक थी उसमें इस चीज़ का वो मिलता है कि हिस्ट्री में जो इजिप्टियन और ग्रीक सिविलाइजेशन थी वो कैसे कैसे मुश्किल हालातों में जो है डेवलप हुई है। तो स्टार्ट करते हैं पहले हेरोडोटस से। Writing of history, as we understand it, is a Greek invention, and foremost among the early Greek historians was Herodotus. Herodotus was born at Halicarnassus, a largely Greek settlement on the southwest coast of Asia Minor. In early life, he was involved in political troubles in his home city and forced to be in exile to the island of Samos and then to Athens. सेमेस एंड एथन जो है जगह का नाम है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। एंड फ्रॉम देयर हेरोडोटस सेट आउट ऑन ट्रेवल whose leisurely character and broad extent indicate that they occupied many years। इस मतलब एज्यूम किया जाता है कि ये बहुत ही इत्मीनान से जो ये लिखने का काम करते थे और इनको इस चीज में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, ये ऐसा माना जाता है। एंड इट इज एज्यूम्ड दैट ही मेड थ्री प्रिंसिपल जर्नीज, perhaps as a merchant, collecting material and recording his impressions. In the Black Sea, he sailed all the way up the west coast to the Greek communities at the mouth of Dnieper River in what is now Ukraine, and then along the south coast to the foot of Caucasus. In Asia Minor, he traversed modern Syria and Iraq and traveled down the Euphrates, possibly as far as Babylon. बेबीलोन भी है जगह का नाम है। अब इजिप्ट में आते हैं कि इन इजिप्ट ही असेंडेड द नील रिवर फ्रॉम इट्स डेल्टा टू समवेयर नियर एसवन। मतलब नील रिवर को भी उन्होंने पूरा वो किया हुआ है और उसको मतलब एक्सप्लोर किया है। उसके बाद पिरामिड्स अलोंग द वे एंड अराउंड 443 बिफोर क्राइस्ट हेरोडोटस बिकेम अ सिटीजन ऑफ थूरियम इन साउदर्न इटली। और ये एक कॉलोनी थी प्लांटेड एथेनियन ऑस्पिसीज। जो एथेनियन ऑस्पिसीज मतलब जो एथेंस से थे। और इसमें एक जो ये थे कि वहाँ पर सिटीजनशिप सिर्फ जेंट्स को मिलती थी और जो बच्चे और लेडीज थे उनको सिटीजनशिप नहीं मिलती थी। In Thurium, he seems to have passed the last years of his life involved almost entirely in finishing the history of Herodotus, a book larger than any Greek prose। उसके बाद है The reputation of Herodotus as a historian stood high even in his own day. In the absence of numerous copies of books, it is natural that a history, like other literary composition, should have been read aloud at public and private gatherings. In Athens, some 20 years before his death, Herodotus recite, Herodotus recited completed portions of his history to admiring audience and we are told was voted on unprecedented
predatory large sum of public money in recognition of the merit of his work. Although the story of the Persian Wars provides the connecting link in the history of Herodotus, the work is no more chronicle of careful record events. Almost anything that concerned people entrusted Herodotus and his history is a vast store of information on all manner of detail of daily life. क्योंकि ये जो हिस्ट्री लिखते थे उनमें इनकी एक खास बात ये थी कि ये पूरी डिटेल लिखते थे कि कौन सी चीज़ क्या है कैसे है। तो इससे इनकी जो बुक्स थी वो वास्ट स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन बनती थी और इनको काफ़ी पसंद किया जाता था। He contrived to set before his compatriots a general picture of the known world, of its various peoples, of their lands and cities, and of what they did and all what they did it. The object of his history, as Herodotus conceived it, required him to tell all he had heard but not necessarily to accept it all as fact. वो लिखते थे जो वो सुनते थे और जो देखते थे, पर वो उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे कि वो जरूरी नहीं है कि हम इस चीज को माने। He stated, "My job is to report what people say, not to believe it at all, and this principle is meant to apply to my work, to my whole work." And accordingly, giving the traditional account of an occurrence and then offering his own interpretation or a contradictory one from a different source, leaving the reader to choose between versions. One point must be clear: Herodotus interpreted the state of world at his time as a result of change in the past and felt that change could be described. It is this attempt that earned for him, and not any of earlier writers of prose, the honorable title फादर ऑफ हिस्ट्री। और इनकी जो ये थोड़ा डिफरेंट करने की जो सोच थी इसी की वजह से इनको ये टाइटल से ऑनर किया गया था फादर ऑफ हिस्ट्री। Herodotus took the trouble to describe Egypt at great length, and for he seems to have been more enthusiastic about the Egyptians. enthusiastic मतलब कि वो उत्साहित about the Egyptians and then about almost any other people that he met. Like most visitors to Egypt, he was distinctly aware of the exceptional nature of the climate and the topography along the Nile. And for anyone who sees Egypt without having heard a word about it before, must perceive that Egypt is an acquired country and the gift of the river. The famous passage often paraphrased to read, Egypt is the gift of the Nile. Egypt is the gift of Nile, and it aptly sums up the great geographical fact about the country. In that sun-soaked, rainless climate, the river overflowing its banks each year regularly deposited the rich silt washed down from the East African islands. Uh, to extreme the limit of the river's waters, there were fertile fields for crops and pasturage for animals, and beyond that, the barren desert frontier stretched in all directions. This was the setting in which that literate, complex society known as Egyptian civilization developed. The emergence of one of the world's earliest culture was essentially a political act. Between 3500 and 3100 before Christ, the self-sufficient agriculture communities that clung to the strip of land bordering the Nile had gradually coalesced into larger units there. उसके बाद about 1300 before Christ, these regions were united by military conquest from the south by the ruler named Menes and uh, who stepped forth into history to head the long line of pharaohs.
protected from external invasion by the same desert that isolated her, Egypt was able to develop the most stable and longest lasting of the ancient civilization, whereas Greek and Rome counted their supremacies by the century. Egypt counted uh, here by millennium, a well-ordered succession of 32 dynasties stretched from the unification of the Upper and Lower Kingdoms by the Menes to Cleopatra, encountered with in 31 before Christ, long after the apogee of ancient Egypt. And Napoleon was able to exalt his very veterans with the glory of its past. वेरी वेटरन्स मतलब जो उसके वर्कर्स बोले कि जो उस टाइम जैसे मतलब थके हुए थे तो विद द ग्लोरी ऑफ इट्स पास्ट स्टैंडिंग इन द शेडो ऑफ ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज एंड ही क्राइड सोल्जर्स 40 centuries are looking down upon you. सर ये था हिस्ट्री पार्ट इसका। इसके बाद जो नंबर रिप्रेजेंटेशन है वो कात्यायनी का पार्ट है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। कात्यायनी, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है तो फिर मैं कात्यायनी के फ़ोन से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कात्यायनी कहाँ है? कात्यायनी भी यही है, वो एक्चुअली मैं कात्यायनी से मिलने हाफ वे आया तो। अच्छा अच्छा, ठीक। और सर सपना अभी मतलब ट्रैवल कर रही है इस टाइम, तो मैं सपना का भी पढ़ा दूंगा। ठीक है ठीक है। ओके सर, सो जस्ट अ मिनट। लेकिन कात्यायनी का पार्ट तो अभी हुआ नहीं। सर पहले मेरा और सपना का था ना, स्टार्टिंग के जो थे, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक ठीक। कात्यायनी की शुरू करा, तो अभी कर देते हैं। सो गुड मॉर्निंग। अभी मैं चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वैसे तो अखिल ने इस चैप्टर का मिड पार्ट से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैं इस चैप्टर के स्टार्टिंग से आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इस चैप्टर का नाम है अर्ली अर्ली नंबर सिस्टम्स एंड सिंबल्स। कि मतलब बहुत पहले, बहुत पुराने टाइम में हम नंबर सिस्टम क्या होता था और उन नंबर्स को हम किन सिंबल से डिनोट करते थे, किन सिंबल से दर्शाते थे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रिमिटिव काउंटिंग, अ सेंस ऑफ नंबर। तो प्रिमिटिव काउंटिंग वर्ड को अगर हम तोड़े तो प्रिमिटिव से पता चलता है कि प्राचीनता, कि वो पुराना है, पुरानी काउंटिंग कैसी होती थी और सेंस ऑफ नंबर बनी कैसे हमारे दिमाग में, हमारे पूर्वजों के दिमाग में। तो पहले मैथमेटिक्स पे आते हैं, तो इधर लिखा है कि द रूट ऑफ द टर्म मैथमेटिक्स इज इन द ग्रीक वर्ड मैथमेटा, which was used quite generally in early writings to indicate any subject of instruction or study. तो मैथमेटिक्स एक ग्रीक वर्ड मैथमेटा से आया है, जिसे जिसे किसी मतलब स्टडी या इंफॉर्मेशन के सब्जेक्ट को माना जाता था। और मैंने गूगल पे भी रिसर्च किया इस पे, थोड़ा सा ही किया, तो उसमें ये बताया था कि मैथमेटा एक ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है, होता है जिसे आप एक टाइम पे पढ़ सकते हो और उसी टाइम पे समझ के किसी दूसरे को भी समझा सकते हो। तो ये मैथमेटिक्स मैथमेटा वर्ड से डिराइव हुआ। और जैसे जैसे लर्निंग एडवांस होती गई तो हमने ये इट वाज फाउंड कन्वीनियंट टू रिस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ दिस टर्म टू पर्टिकुलर फील्ड्स ऑफ नॉलेज। तो मतलब जैसे जैसे लर्निंग पढ़ाई मतलब सोच एडवांस होती गई तो ये कन्वीनियंट माना गया कि ये जो टर्म है मैथमेटा, ये कुछ ही नॉलेज की फील्ड्स तक रिस्ट्रिक्ट की जाए, कुछ ही फील्ड्स को दिया जाए ये डिनोशन के लिए। तो द पाइथागोरियंस ने इस मैथमेटा वर्ड को अरिथमेटिक और ज्योमेट्री को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया था। और इन सब्जेक्ट्स का मतलब अपना अलग अलग नाम था। मतलब मैथमेटा से पहले
अरिथमेटिक को अलग बोला जाता था, ज्योमेट्री को अलग बोला जाता था, लेकिन फिर बाद में उनको जोड़ के मैथमेटिक्स नाम दिया जाने लगा। The Pythagoreans' use of the name would perhaps be a basis for the notion that mathematics began in classical Greece during the years from 600 to 300 BC। और पाइथागोरियंस ने मैथमेटिक्स वर्ड यूज किया है, इससे पता चलता है कि मैथमेटिक्स 600 से 300 BC तक पुराना था। लेकिन इसकी हिस्ट्री जो है वो तो बहुत पहले की है, but its history can be followed much further back. 3 or 4,000 years ago, in ancient Egypt and Babylonia, there already existed a significant body of knowledge that we should describe as mathematics। मतलब 3 से 4 हजार साल पहले एंशंट इजिप्ट और बेबीलोनिया में भी ऐसे कुछ मटेरियल्स, ऐसे कुछ प्रूफ्स मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि वहां भी मैथमेटिक्स होता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे पिरामिड्स, आप पिरामिड्स भी देख सकते हो। पिरामिड्स बनाना कोई मतलब आसान काम नहीं है कि 10-12 जने लगे और बन गए। उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशंस लगी होंगी कि मिट्टी के ब्लॉक्स कितने परफेक्ट होने चाहिए, कितनी धूप में उनको रखना चाहिए, कितना पिघलाना चाहिए, ऐसे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन लगी होंगी। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स तब भी था। If we take the broad view that mathematics involves the study of issue of quantitative or spatial nature, number, size, order, and form, it is an activity that has been present from the earliest days of human experience। अगर हम मैथमेटिक्स को मान के चलें कि उसमें पढ़ाई होती है क्वांटिटी और स्पेस के बारे में, जैसे कि नंबर, साइज, ऑर्डर या फॉर्म, तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो मैथमेटिक्स था ये बहुत ही प्राचीन काल से हमारे इंसानों के एक एक्सपीरियंस में था, क्योंकि इंसान इसे रोज एक्सपीरियंस करते थे। वो मैं आगे बताता हूँ कि कैसे। इन एवरी टाइम एंड कल्चर देयर हैव बीन people with a compelling desire to comprehend and master the form of the natural world around them। हर टाइम और हर कल्चर में ऐसे कई लोग रहे होंगे जिन्होंने चाहा होगा कि वो अपने आसपास के कुदरत पे हक जमा सकें, उस पर राज कर सकें। तो इसलिए उनके अंदर एक जिज्ञासा आई, क्यों ना नेचर को जाना जाए। तो नेचर में मैथमेटिक्स इस तरह जुड़ा हुआ है कि मतलब जैसे एक शरीर के अंदर आत्मा। To use Alexander Pope's words, this mighty maze is not without a plan। अलेक्जेंडर पोप के वर्ड थे कि this mighty maze is not without a plan, यानी ये जो हमारा कुदरत है, ये जो हमारा जहां है, ये बिना किसी प्लान के नहीं है। It is commonly accepted that mathematics originated with the practical problems of counting and recording numbers। तो ऐसे कॉमनली एक्सेप्ट किया जाता है कि मैथमेटिक्स ऐसे है कि मतलब हम काउंटिंग या रिकॉर्डिंग होती थी नंबर्स की, तो उस वजह से मैथमेटिक्स आ गया। तो ये जो आइडिया ऑफ नंबर है, इसका बर्थ कैसे हुआ? द बर्थ ऑफ आइडिया ऑफ नंबर इज सो हिडन बिहाइंड द वेल ऑफ काउंटलेस एजेस दैट इट इज टेंटलाइजिंग टू स्पेकुलेट ऑन द रिमेनिंग एविडेंसेस ऑफ अर्ली ह्यूमन सेंस ऑफ नंबर। कि मतलब ये जो नंबर का आइडिया था, ये कब आया ये हमें पता ही नहीं है। ये कितने मतलब हजार, कितने 10,000 साल लगे हमें नहीं पता। मतलब और हम इस चीज को देखकर मतलब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो आइडिया ऑफ नंबर है, हम ये एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते वो कहाँ से आया है। और हमें जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक प्राप्त हुई है नंबर के बारे में, उसी को यूज करके हम नंबर्स के फैक्ट्स या फिर उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम सीधा दे देते हैं। हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि टाइम में वापस जाना मुश्किल है ना। तो हम ये कभी पता नहीं लगा सकते कि जो आइडिया ऑफ नंबर था उसका जन्म हुआ कहाँ से। Our remote ancestors of some 20,000 years ago, who were quite as clever as we are, must have felt the need to enumerate their livestock। हमारे रिमोट यानी काफी दूर के, दूर यहाँ सेंस बनाता है मतलब टाइम से। हमारे आवर रिमोट एंसेस्टर्स, बहुत पुराने जो पूर्वज थे हमारे, कम से कम 20,000 साल पहले के पूर्वज, वो मतलब काफी हम जितने ही चालाक थे। और उन्होंने सोचा होगा क्यों ना मैं अपने भेड़ बकरियों को काउंट करूं। ठीक है। तो फिर टैली ऑब्जेक्ट्स फॉर बार्टर। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि एक एक्सचेंज सिस्टम होता है जिसमें हम एक चीज देते हैं, उनसे दूसरी चीज एक्सचेंज में लेते हैं। क्योंकि पुराने टाइम में करेंसी या फिर पैसा नाम की चीज नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे कि दो बोतल दूध के बदले एक बकरी ले लेते थे, उसे बार्टर सिस्टम बोलते थे। तो उसके लिए भी टैली करना समझा उन्होंने कि जरूरी था। या फिर दिन कैसे पास हो रहे हैं वो भी मार्क करना जरूरी था। But the evolution of counting with its spoken number words and written number symbols
was gradual and does not allow any determination of precise dates for its stages. मतलब ये जो काउंटिंग की जो एवोल्यूशन हुई, काउंटिंग जैसे जैसे बढ़ती गई, ये ग्रेजुअल था। और नंबर के वर्ड्स बोले जाने लगे, नंबर्स के सिंबल्स लिखे जाने लगे। ये ग्रेजुअल था, मतलब धीरे धीरे अपने आप होता रहा। और इनकी कोई फिक्स डेट नहीं है कि ये इस तारीख को इस साल को आया था। ये ग्रेजुअली होता रहा। हर कल्चर में अलग अलग जगह अलग 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 तरीके होते थे। Anthropologists tell us that there has hardly been a culture, however primitive, that has not had some awareness of number, though it might have been as rudimentary as the distinction between one and two. एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कहा है कि बड़ी मुश्किल से ही कोई कल्चर या कोई सभ्यता रही होगी, चाहे कितनी भी पुरानी हो, कि उनको नंबर की अवेयरनेस हो ही ना। क्योंकि हर सभ्यता में नंबर्स के प्रूफ पाए जा रहे हैं। और वैसे भी उस टाइम पे एक और दो के बीच में फर्क लगाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी नंबर्स की अवेयरनेस हर सभ्यता को, लगभग हर सभ्यता को थी। Certain Australian Aboriginal tribes, for instance, counted to two only, with any number larger than two called simply much or many. कुछ ऑस्ट्रेलियन की एबोरिजिनल ट्राइब्स थी, वो सिर्फ दो तक काउंट करते थे। और अगर दो से ज्यादा काउंट करने पे आते थे तो वो बोलते थे कि वो बहुत ज्यादा है, काउंट नहीं हो सकते। South American Indians along the tributaries of the Amazon were equally destitute of number words. साउथ अमेरिकन इंडियंस ने भी नंबर्स के लिए ऐसा ही आइडिया लगाया था। Although they ventured further than the Aborigines in being able to count to six. लेकिन उन्होंने दो से बढ़ के छह तक काउंटिंग की। They had no independent number names for groups of 3, 4, 5 और 6. और उन्होंने चार पाँच 3, 4, 5 और 6 के लिए अलग अलग ग्रुप्स के नाम नहीं दिए थे। जैसे 3 को हम 3 बोलते हैं ना, वो 3 को 2 1 बोलते थे। और जैसे हम 4 को 4 बोलते हैं, वो 4 को 2 2 बोलते थे। जैसे हम 5 को 5 बोलते हैं, वो 5 को 2 2 1 बोलते थे। ऐसे मतलब नंबर्स के वर्ड्स को जोड़ते थे। In their counting vocabulary, 3 was called 2 1, 4 was 2 2, and so on. A similar system has been reported for the Bushmen of South Africa. और ऐसा ही सेम सिस्टम जो साउथ अफ्रीका के जो बुशमैन थे, उनके पास भी पाया गया है, जो 10 तक काउंट करते थे। वो भी सिर्फ दो वर्ड्स को यूज करके। हम तो जैसे 1 2 बोल रहे हैं ना, उन्होंने शायद प्रथम द्वितीय तो मैं संस्कृत बता रहा हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल। मान लो कि एक वर्ड आ गया कांस्टेंट, दूसरा आ गया वेरिएबल। तो अगर उन्होंने 3 बताना था तो वो कांस्टेंट एंड वेरिएबल बोलते थे। अगर उन्होंने 4 बताना था तो वो वेरिएबल एंड वेरिएबल बोलते थे। तो उन्होंने दो वर्ड्स रखे थे, एक और दो को बताने के लिए, और दो से ज्यादा बताने के लिए उन वर्ड्स को वो रिपीट करते थे उतनी बार जितना नंबर चाहिए। और बियॉन्ड 10 मतलब जस्ट 10 से आगे अगर काउंटिंग करनी होती थी, द डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस बिकेम टू लॉन्ग। कि मतलब 10 से आगे काउंटिंग करने वाले जो शब्द थे, अगर आप वेरिएबल को 5 से ज्यादा बार बोलोगे तो आप खुद थक जाओगे, कितनी बार बोलोगे। तो वो काउंट 10 से ज्यादा इसलिए काउंटिंग नहीं करते थे। इट इज नोटेबल दैट सच ट्राइबल ग्रुप्स वुड नॉट विलिंगली ट्रेड से 2 cows for 4 pigs। मतलब और ये भी नोट किया जाता है कि मतलब उनकी काउंटिंग थी, उनका काउंटिंग सिस्टम था, लेकिन उनको सम वगैरह करना नहीं आता था। वो इससे पता चलता है कि वो मतलब ऐसे ही दो गायों के बदले दो सुअर ट्रेड नहीं करते थे, जो बार्टर सिस्टम होता था। लेकिन अगर उनको ऐसा किया जाए कि एक गाय दी जाए, फिर उनसे दो सुअर ले लें, और फिर एक गाय दी जाए और फिर उनसे दो सुअर ले लें, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बहुत छोटे छोटे ट्रेड है। लेकिन अगर इकट्ठे दो गायें दे दी और उनके बदले चार सुअर ले लिए तो उनके लिए मुश्किल होती थी। तो इससे पता चलता है कि उस टाइम एडिशन वगैरह नहीं आया था, उस टाइम बस एक सेंस ऑफ नंबर बन रहा था। द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इमीडिएट टेक्निक फॉर विजिबली एक्सप्रेसिंग द आइडिया ऑफ नंबर इज टेलिंग। और सबसे पुराना और इमीडिएट टेक्निक, इमीडिएट मतलब अ, जिनसे पता चला, नंबर का आइडिया लगा कि नंबर आया कहाँ से, वो टैली से पता चला। तो टैली क्या होती है? द आइडिया इन टेलिंग इज टू मैच द कलेक्शन टू बी काउंटेड विद सम इजीली एम्प्लॉयड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब टेलिंग का आइडिया ऐसा होता है कि आपको किसी कलेक्शन में किन्हीं चीजों को काउंट करना है, तो उनके बदले आप किसी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रखते थे ताकि वो कलेक्शन काउंट हो सके। इन द केस ऑफ अर्ली फोरबियर्स देवर दीज वर फिंगर्स, शेल्स और स्टोन्स। और हमारे पूर्वजों के टाइम में ये हमारी उंगलियों से
मतलब हमारे पूर्वज उंगलियों से काउंट करते थे, या शेल्स होती थी, या पत्थर होते थे। भेड़ें फॉर इंस्टेंस, शीप फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, could be counted for driving could be counted by driving them one by one through a narrow passage while dropping a pebble for each। मतलब एक पतला पतला सा रास्ता बनाता था, भेड़ों को चराने वाला पतला सा रास्ता बनाता था, और एक एक भेड़ जाती थी। जब वो एक भेड़ उस पतले से रास्ते से निकल जाती थी, तब वो एक पत्थर फेंक देता था, और इसी तरह वो हर भेड़ को काउंट कर लेता था। एज द फ्लॉक वॉज गैदर्ड इन फॉर द नाइट, और जैसे रात को वो जो फ्लॉक, वो जो भेड़ों का समूह था, उसे जब इकट्ठा किया जाता था, तो फिर पत्थर इकट्ठे किए जाते थे। मतलब एक भेड़ के लिए एक पत्थर, दूसरी भेड़ के लिए दूसरा पत्थर। इससे पता चल जाता था कि मेरी भेड़ें आ चुकी हैं या नहीं है। तो अब ऑन द ओकेजन ऑफ अ विक्ट्री, अ ट्रीटी और द फाउंडिंग ऑफ अ विलेज, फ्रीक्वेंटली अ केयर, a pillar of stones was erected with one stone for each person present। और इसी तरह गांव बनने लगे, फिर उसके बाद लोग साथ में समूह में रहने लगे। तो होता ये था, फिर गांव के बीच में जंग भी होती थी, कभी कभी एक पीस ट्रीटी भी बनती थी, एक शांति प्रस्ताव भी होता था, जिसमें एक गांव दूसरे को घुस देता था, दूसरा गांव एक को। तो जब विक्ट्री होती थी तब भी गांव जुड़ते थे, शांति प्रस्ताव होता था, ट्रीटी होती थी तब भी गांव जुड़ते थे, और या फिर गांव बनता था तब तो गांव बन ही रहा है। तो उसमें क्या करते थे कि एक केयर्न, एक पिलर बनाया जाता था पत्थरों का, और उन उस पिलर में उतने ही पत्थर होते थे जितने उस गांव में लोग होते थे। तो इससे पता चलता है कि उसमें टैलिंग का भी सिस्टम आ गया था उस टाइम पे, कि मतलब काउंट किया जाता था कलेक्शन को बाय अ सेट ऑफ एम्प्लॉयड ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि पत्थर, शेल्स या फिंगर्स। ओके, द टर्म टेली कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ब टेलर। टेली वर्ड जो आया है, टेली टर्म जो आई है, वो फ्रेंच वर्ब टेलर से आई है, जिसका मतलब है कट। जैसे कि इंग्लिश वर्ड है टेलर, उससे मैच करता करता टेलर वर्ड है। द रूट इज सीन इन द लैटिन टेलियर, मतलब, और इसकी जो जड़ है वो लैटिन से आई है, टेलियर से, जिसका मतलब भी कट है। और ये भी इंटरेस्टिंग है, अगर आपको नोट करना हो तो, ये भी इंटरेस्टिंग है कि इंग्लिश वर्ड राइट जो है वो एंग्लो सैक्सोन वर्ड है, रिटर्न से आया है, जिसका मतलब होता है स्क्रैच या नॉच करना। स्क्रैच करना आपको पसंद नहीं, सॉरी, पता ही है क्या होता है, कि मतलब आप जब पेन को आप पेपर पे स्क्रैच करते हो, तब कुछ सिंबल्स बन जाते हैं, जिसे आप बोलते हो कि आप लिख रहे हो, टू राइट। तो वो एंग्लो सैक्सोन वर्ड रिटर्न से आया है। Neither the spoken numbers nor finger telling have any permanence, although finger counting shares the visual quality of written numerals। मतलब ना ही बोलने वाले नंबर और ना ही फिंगर टैलिंग की कोई परमानेंस रही ना, मतलब वो सिस्टम जो था फिंगर से टैली करना या मुंह से काउंट करना, वो परमानेंट नहीं रहे। भले ही फिंगर काउंटिंग से क्या होता था, हमारे दिमाग में एक विजुअल इमेज बन जाती थी। टू प्रिजर्व द record of any count it was necessary to have other representation। और किसी भी रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए दूसरी रिप्रेजेंटेशन जरूरी थी। वी शुड रिकॉग्नाइज एज ह्यूमन इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस द आइडिया ऑफ मेकिंग अ correspondence between the events or objects recorded and a series of marks on some suitably permanent material। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे ह्यूमन इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस हुआ, जैसे जैसे इंसानी खोज बढ़ी, इंसानी दिमाग बढ़ा, उन्होंने क्या किया कि टेलिंग का आइडिया उन्होंने बढ़ा दिया, कि वो क्या करते थे, किसी इवेंट्स या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कैसे टेली करते थे। हर ऑब्जेक्ट के लिए एक परमानेंट मटेरियल पे सीरीज ऑफ मार्क्स बनाते थे, विद वन मार्क विद वन मार्क रिप्रेजेंटिंग ईच इंडिविजुअल आइटम, और हर एक मार्क एक इंडिविजुअल आइटम को रिप्रेजेंट करता था। द चेंज फ्रॉम काउंटिंग बाय असेंबलिंग कलेक्शंस ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स टू काउंटिंग बाय मेकिंग कलेक्शंस ऑफ मार्क्स ऑन वन ऑब्जेक्ट इज अ लॉन्ग स्टेप, not only toward abstract number concept but also toward written communication। मतलब हुआ ये कि काउंटिंग हमने कहाँ से स्टार्ट की थी, मतलब पहले कलेक्शन करते थे, पत्थरों को कलेक्ट करते थे या फिंगर से या शेल से, मतलब हम टैली करते थे। लेकिन उससे क्या किया, हम उसको छोड़ के एक परमानेंट ऑब्जेक्ट ली, और उसके बाद उस पे सीरीज ऑफ मार्क्स लगवाए। तो उससे क्या हुआ कि ये काफी लंबा स्टेप था। तो मतलब, और वैसे भी ये एब्स्ट्रैक्ट नंबर की मतलब दिमागी सोच के लिए ही लंबा स्टेप नहीं था, बल्कि ये एक तरह से मतलब रिटन कम्युनिकेशन में भी लंबा स्टेप था, क्योंकि लोग मार्क्स लगाना शुरू कर दिए। मतलब तभी से एक लिखने की आगे कला आ गई। काउंट्स वर मेंटेन्ड बाय मेकिंग स्क्रैचेस ऑन स्टोन,
by cutting notches in wooden sticks or pieces of bone, or by tying knots and strings of different colors or length. तो काउंट्स कैसे मेंटेन किए जाते थे कि एक लकड़ी का टुकड़ा होता था या हड्डी का पीस होता था, जो जानवर होते थे, जानवरों की हड्डी का पीस लिया जाता था या फिर एक धागा लिया जाता था, और लकड़ी या हड्डी के पीस में स्क्रैचेस या नोचेस मार्क्स किए जाते थे। हर नोच एक एक आइटम या इवेंट को बताती थी। उसी तरह धागे में भी गांठें बांधी जाती थी कि एक धागे में अगर 4 गांठें हैं तो वो 4 कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को बता रही है। Then, when the numbers of tally marks became too unwieldy to visualize, primitive people arranged them in easily recognizable groups as such as groups of 5. लेकिन जब ऐसे भी टैली मार्क्स को पहचानना मुश्किल हो गया, क्योंकि सारे इक्वली डिस्टेंस पे टैली वो नोचेस लगते थे, इक्वल डिस्टेंस पे वो मार्क्स लगाए जाते थे, तो उनको पहचानना थोड़ा कठिन हो गया, उनको विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि उन टैली मार्क्स को, वो जो नोचेस लगाते थे हड्डी पे, उनको 5-5 के ग्रुप में, 5-5 के रिकॉग्नाइजेबल, मतलब उनका पता लगाया जा सके, फर्क पता लगाया जा सके, उन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। मतलब 5 में क्यों किया? क्योंकि एक हाथ में 5 उँगलियाँ होती थी, इसलिए उन्होंने 5-5 में डिवाइड कर दिया। इट इज़ लाइकली दैट ग्रुपिंग बाय पेयर्स केम फर्स्ट, और ये तो बहुत लाइकली है, ये बहुत कॉमन सोच है कि पेयर से ग्रुपिंग पहले स्टार्ट हुई होगी, क्योंकि पहले 1 आया, 1 के साथ 2 आया, तो 2 से ग्रुपिंग स्टार्ट हुई होगी। लेकिन फिर ग्रुपिंग बढ़ी 5 से 5 तक, फिर 10 पर बढ़ी होगी, फिर 20 पर बढ़ी होगी, ऐसे बढ़ती गई होगी ग्रुपिंग। The organization of counting by groups was a noteworthy improvement on counting by ones. मतलब ग्रुप, मतलब 1 से काउंट करने से हम सीधा ग्रुप्स पे आ गए, 5-5 के ग्रुप्स पर काउंट करना शुरू कर दिए। ये मतलब काफी नोटवर्दी इंप्रूवमेंट थी। The practice of counting by fives से shows a tentative sort of progress toward reaching an abstract concept of five. मतलब जैसे हम फाइव्स की काउंटिंग पे आ गए तो हमारे दिमाग में एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट आ गया फाइव का, कि मतलब फाइव होता क्या है, कि हमारे वो जब भी फाइव देखते थे तो 5 उंगलियों वाला हाथ बन जाता था कि ये 5 हैं, ऐसे ऐसे। As contrasted with the descriptive ideas, 5 fingers और 5 days, मतलब ये 5 फिंगर्स या 5 डेज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता था। एक्चुअली इसमें FI जो अल्फाबेट्स हैं वो मतलब इरेज हो गए हैं ना, तो फिर मुझे थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है। टू बी श्योर इट वॉज अ टिमिड स्टेप इन द लॉन्ग जर्नी टुवर्ड डिटैचिंग द नंबर सीक्वेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स बीइंग काउंटेड। मतलब देखा जाए तो एक बहुत छोटा स्टेप था एक बहुत लंबी जर्नी में, जिसमें हम क्या कर रहे थे कि कलेक्शन को एक सेट ऑफ क्या बोलते, एक सेट ऑफ नंबर से या सेट ऑफ नोचेस से हम मतलब वो कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे, लेकिन हमने उन सेट ऑफ नोचेस को, उन ग्रुप्स ऑफ 5 को अलग करना था और पूरे वर्ल्ड के लिए यूज करना था। तो मतलब हमने उस सेट ऑफ नोचेस, टेलीमार्क्स या नंबर्स को हमने कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट से डिटैच करना था, ताकि हम पूरे वर्ल्ड के लिए उसको जनरलाइज कर सकें, उसको यूज कर सकें। तो ये बहुत लंबी जर्नी का, जिसमें कैलकुलेशन हुई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसका एक बहुत छोटा सा स्टेप है। अब अगला टॉपिक है नोचेस एज टेलीमार्क्स। Bone artifacts bearing incised markings seem to indicate that the people of the Old Stone Age had devised a system of tallying by groups as early as 30,000 BC. जो हड्डियों के आर्टिफैक्ट है, जो पुरानी हड्डियां मिली हैं बहुत पुरानी, उनमें इंसाइज्ड मार्किंग थी। इंसाइज्ड मतलब कट्स लगे थे, मार्क, कट वाले मार्क्स लगे थे। उनसे पता चलता है कि ओल्ड स्टोन एज में भी ऐसा सिस्टम डिवाइस किया गया था जिसमें टैलिंग बाय ग्रुप्स होती थी, और ये कम से कम 30,000 BC साल पुराना है। द मोस्ट impressive एग्जाम्पल इज अ shin bone from a young wolf found in Czechoslovakia in 1937। 1937 में चेकोस्लोवेकिया में एक जवान भेड़िए की शिन बोन मिली, जिसमें मार्क्स लगे हुए थे, और वो कम से कम 7 इंच लंबी थी, और उस हड्डी में 55 डीपली कट नोचेस थे, मतलब स्क्रैचेस लगाए थे 55। और 55 से आप आइडिया लगा ही सकते हो कि 5-5 के उन्होंने 11 ग्रुप बनाए होंगे। और मतलब उन ग्रुप, वो जो ग्रुप थे 5-5 के, उनकी लेंथ ग्रुप में तो क्लोज क्लोज थे वो, लेकिन एक दूसरे से वो काफी अलग अलग थे, more or less equal in length, arranged in groups of 5. Similar recording notations are still used
with the strokes bundled in fives, like मतलब ऐसी सिमिलर रिकॉर्डिंग नोटेशंस थी, यूज की जाती थी। उनमें क्या होता था कि 5 को बताने के लिए पहले 4 लाइंस लगाते थे, फिर उसको कट मार देते थे। वोटिंग रिजल्ट्स इन स्मॉल टाउन्स आर स्टिल काउंटेड इन द मैनर डिवाइस्ड बाय आवर रिमोट इंसिस्टर। कुछ कुछ जो स्मॉल टाउन्स हैं वहाँ पे वोटिंग रिजल्ट्स ऐसे ही काउंट किए जाते हैं जैसे हमारे पूर्वजों ने वोटिंग सिस्टम डिवाइस किया था। फॉर मैनी ईयर्स सच नोस्ट बोन्स वर interpreted as hunting tallies and the incisions were thought to represent kills। और काफी सालों तक ये माना जाता था कि वो जो नॉच्ड बोन्स थी वो हंटिंग टैली की कितना शिकार किया था उसको पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। और साथ ही साथ उन पे जो मार्क्स हैं वो ये बताते थे कि कितने शिकार किए हैं, कितने किल्स किए हैं जानवरों के। A more recent theory, however, is that the first recordings of ancient people were concerned with the reckoning time। और बहुत ही रीसेंट थ्योरी ये बताती है कि ये जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग मतलब पुराने लोगों की ये जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग्स थी ये बस दिन काउंट करने के लिए यूज की जाती थी या टाइम काउंट करने के लिए। द मार्किंग्स ऑन बोन्स डिस्कवर्ड इन फ्रेंच केव साइट्स इन लेट 1880s are grouped in sequences of recurring numbers that agree with the number of days included in successive phases of the moon। बोला है कि फ्रेंच केव साइट्स में जो 1880 में फ्रेंच केव साइट्स थी वहां पर जो हड्डियां मिली वहां पे मार्किंग्स कुछ इस सीक्वेंस में लगी थी। वो मून के सक्सेसिव फेजेस के दिनों को काउंट करने मून के सक्सेसिव फेजेस के जो दिन थे उनसे वो मैच कर रही थी। तो मतलब हो सकता है कि किसी इंसान ने मून के सक्सेसिव फेजेस देखे हों और उनको मार्क किया हो कि मतलब मून अभी हाफ है तो हाफ वो इतने दिन रह रहा है, फिर उसके बाद कम हो रहा है तो वो कम कितने दिन में कम हो जा रहा है और कितने दिन में गायब हो जा रहा है। तो उस तरह उसने काउंट किया होगा। वन माइट आर्ग्यू दैट these incised bones represent lunar calendars। और कोई ये बोल भी सकता है कि ये जो इंसाइज्ड बोन्स है ये लूनर कैलेंडर बता रहे हो कि चांद का एक कैलेंडर बता रहे हो कि चांद कब छुपता है कब फुल होता है, ऐसे ऐसे। तो another arresting example of an incised bone was unearthed at Ishango along the shores of Lake Edward। एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मिला है एक हड्डी का जो ईशांगो में मिली थी लेक एडवर्ड के किनारों के पास। वन ऑफ द हेडवाटर सोर्स ऑफ नाइल, नाइल रिवर के हेडवाटर जो सोर्सेज हैं वहां पे। द बेस्ट आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल एविडेंस डेट्स द साइट टू 17,500 BC और some 12,000 years before the first settled agrarian communities appeared in the Nile Valley। और ऐसे ही कुछ बेस्ट आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल एविडेंस जो हैं वो कम से कम 12,000 साल पुराने हैं। और नाइल वैली में जब फर्स्ट एग्रेरियन कम्युनिटीज अपेयर हुई थी उससे भी पहले के हैं, मतलब जब वहाँ पे कम्युनिटीज बनना शुरू हुई उनसे भी काफी पुराने हैं। दिस फॉसिल फ्रेगमेंट वाज प्रोबेबली द हैंडल ऑफ अ टूल यूज्ड फॉर एनग्रेविंग और टैटूइंग। और ये जो प्राचीन टुकड़ा था ये एक टूल का हैंडल टूल का हैंडल माना जाता है कि प्रोबेबली एक टूल का हैंडल होगा जिसे एनग्रेविंग एनग्रेविंग मतलब गाड़ना, गाड़ के निशान बनाना, या फिर टैटू टैटू बनाने के लिए। पुराने जमाने में टैटू ऐसे बनते थे कि वो एक इंसान के शरीर में घाव भर देते थे, फिर जब वो घाव सूखता था उसी घाव का निशान बन जाता था उनकी स्किन में। उस तरह से टैटूइंग होती थी। और इवन राइटिंग इन सम वे, मतलब वो जो टूल था शायद उसको लिखने के लिए भी यूज किया गया हो। इट कंटेन्स ग्रुप्स ऑफ नोचेस अरेंज्ड इन 3 डेफिनेट कॉलम्स। और इसमें ग्रुप्स ऑफ नोचेस थे और उनको 3 डेफिनेट कॉलम्स में अरेंज किया गया था। द ऑड अनबैलेंस्ड कंपोजिशन डज नॉट सीम टू बी डेकोरेटिव। और उनका जो ऑड और अनबैलेंस कंपोजिशन था वो इतना सुंदर नहीं दिख रहा था। तो इससे साफ पता चलता है कि उन्होंने आर्ट के लिए नहीं किया, उन्होंने काउंटिंग के लिए किया। In one of the columns, the groups are composed of 11, 21, 19 and 9 notches। एक कॉलम में 11, 21, 19 और 9 नोचेस को अलग अलग तरह से अरेंज किया हुआ है। तो जो इसमें शायद ये पैटर्न हो सकता है कि 10 में एक जोड़ें तो 11 बनता है, और 20 में एक जोड़ें तो 21, और 20 में एक कम करें तो 19, और 10 में एक कम करें तो 9। द नोचेस इन अनदर कॉलम अकर इन 8 ग्रुप्स। दूसरी कॉलम में 8 ग्रुप्स बने नोचेस के, और कुछ इस ऑर्डर में 3, 6, 4, 8, 10, 5, 5, 7। ये अरेंजमेंट हो सकती है ये बताने के लिए कि मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन बाय 2, जैसे कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, फिर उसके बाद 10, 5, 5, 7 की अरेंजमेंट हमें नहीं पता कि कैसे की गई है। ये जस्ट मतलब सोचा गया है, माना गया है।
हम जस्ट गेस कर सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि ये किस लिए बनाए गए हैं। द लास्ट कॉलम हैज 4 ग्रुप्स कंसिस्टिंग ऑफ 11, 13, 17 एंड 19। और लास्ट कॉलम में 11, 13, 17 और 19 के इंडिविजुअल नॉचेस, अलग अलग नॉचेस लगे थे। द पैटर्न हियर मे बी fortuitous and does not necessarily indicate, as some authorities are wont to infer, a familiarity with prime number। और ये जो पैटर्न है ये मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसे भी बनाया जा सकता है, किसी और चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जा सकता है, और जरूरी नहीं है कि ये प्राइम नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ही यूज किया गया है। Because 11, 13, 17 and 19 sum is equal to 60 and 11, 21, 19 plus 9 sum is equal to 60, it might be argued that markings on the prehistoric Ishango bone are related to a lunar count। और मतलब पहली और लास्ट कॉलम के मार्किंग्स का अगर सम करें तो दोनों साइड 60 आ रहा है। और कोई ये भी बोल सकता है कि इस पे जो ईशांगो बोन पे जो मार्किंग्स हैं, पुरानी मार्किंग्स हैं, ये हो सकता है कि ये लूनर काउंट को बता रही हूँ, विद द फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम्स इंडिकेटिंग 2 लूनर मंथ्स। और पहला और तीसरा जो कॉलम है हो सकता है वो दो अलग अलग चंद्र अ, चंद्र महीने को बता रहे हो कि चांद दो अलग अलग महीनों में कैसे चल रहा है, शायद वो बता रहे हैं। हमें नहीं पता, कोई कुछ भी आर्ग्यू कर सकता है, कोई प्राइम नंबर बता सकता है, कोई कुछ भी आर्ग्यू कर सकता है, मतलब हम नहीं बता सकते। द यूज ऑफ टैली मार्क्स टू रिकॉर्ड काउंट्स वाज प्रोमिनेंट अमंग द प्री हिस्टोरिक पीपल्स ऑफ द नियर ईस्ट। मतलब जो टैली मार्क्स का यूज था वो नियर ईस्ट के पीपल ज्यादा करते थे। Archaeological excavations have unearthed a large number of small clay objects that had been hardened by fire to make them more durable। आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिस्ट ने जब एक्सकवेशन की, वहां पे खुदाई की, तो उन्हें बहुत ज्यादा ऐसी चीजें मिली, छोटी क्ले ऑब्जेक्ट्स मिली उनको, जिनको आग में गर्म करके और स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। क्ले को क्या किया जाता था, पहले क्ले से चीजें बनाई जाती थी, फिर उसको आग में डाल के थोड़ा ड्यूरेबल, ताकि वो टूटे ना। These handmade artifacts occurred in a variety of geometric shapes, the most common being circular discs, triangles and cones। और ये जो हाथों से बने आर्टिफैक्ट थे, इनकी अलग अलग ज्योमेट्रिक शेप थी, कुछ गोल थी, कुछ ट्रायंगुलर थी, कुछ कॉन्स थी। जो सबसे पुरानी थी वो 8000 बीसी साल तक पुरानी है, और उनमें सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस बनी हैं प्लेन सरफेस पे। There will be a cluster of circular impressions as if punched into the clay by the blunt end of a bone or stylus। और कुछ ऐसी क्ले की ऑब्जेक्ट्स हैं कि जिन पे सर्कुलर इंप्रेशन बने, मतलब गोल गोल छेद भी नहीं बोलते हैं, गहरे गहरे कर्व्स बने हैं उन क्ले ऑब्जेक्ट्स में। हो सकता है कि उनको बनाते टाइम किसी ने हड्डी के ब्लंट एंड, पिछले खराब छोर से उसमें हल्का सा पंच किया हो उस क्ले ऑब्जेक्ट में, बिकॉज दे गो बैक टू द टाइम व्हेन पीपल फर्स्ट adopted a settled agriculture life। It is believed that the objects are primitive reckoning devices as they have become known as counters or tokens। और और ये जो डिवाइसेस हैं ये फर्स्ट सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ की एज से आ रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि ये जो डिवाइसेस हैं, ये जो छोटे छोटे टोकन्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको पुराने काउंटिंग कैलकुलेशन डिवाइसेस की तरह यूज किया जाता हो, इसलिए उनका नाम काउंटर्स या टोकन्स बन गया। It is quite likely also that the shapes represent different commodities। और हो सकता है कि अलग अलग शेप्स के जो टोकन है वो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ टोकन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप माइट बी यूज टू इंडिकेट द नंबर ऑफ एनिमल्स इन अ हर्ड। जैसे कि एक टाइप का टोकन मतलब नंबर ऑफ एनिमल्स इन अ हर्ड बता रहा हो कि एक झुंड में कितने जानवर हैं। while one of another kind could count measures of grain। और हो सकता है दूसरा टोकन बता रहा हो कि एक बोरी अनाज में कितने दाने हैं, या एक बोरी अनाज कितनी भारी है, शायद वो बता रहा हूँ। ओवर सेवरल मिलेनिया tokens became increasingly complex with diverse markings and new shapes। और जैसे जैसे मतलब साल बढ़ते गए, जैसे जैसे नए नए युग आते रहे, टोकन्स इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स बनते गए, टोकन्स इंक्रीज होते गए, उन पे अलग अलग मार्किंग्स आते गई, उनकी अलग अलग शेप्स आते गई। इवेंचुअली देयर कैन केम टू बी 16 मेन फॉर्म्स ऑफ टोकन। और फाइनली 16 मेन फॉर्म आ गई टोकन्स की। मैनी वर परफोरेटेड विद स्मॉल होल्स allowing them to be strung together for safe keeping। और कई टोकन्स में छेद किए जाते थे ताकि सबको एक जगह सेफ रखने के लिए इकट्ठा रखा जाए। The token system of recording information went out of favor around 3000 BC। और ये जो टोकन सिस्टम था ये 3000 साल तक
मतलब 3000 BC तक रहा, फिर उसके बाद चला गया विद द रैपिड एडॉप्शन ऑफ राइटिंग ऑन क्ले टैबलेट्स। फिर क्ले टैबलेट्स पे लिखा जाने लगा, इन टोकन्स को एबॉलिश कर दिया गया। मेथड ऑफ टेलिंग दैट हैज बीन यूज्ड इन मैनी डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस इन्वॉल्व्स द नॉट स्टिक। और एक और मेथड था टेलिंग का, और अलग अलग जगहों पे यूज किया जाता था नॉट स्टिक यूज करने का। Although this device provided one of the earliest forms of keeping records, its use was by no means limited to primitive peoples. भले ही ये डिवाइस जो था, ये नोच्ड स्टिक का, ये भले ही काफी पुराना हो, लेकिन इसका यूज पुराने लोगों तक नहीं रहा और ये काफी आगे तक आया। The acceptance of tally sticks as promissory notes or bills of exchange reached its highest level of development in the British Exchequer tallies. ब्रिटिश एक्सचेकर टैलीज में इन टैली स्टिक्स को यूज किया जाने लगा। प्रोमिसरी नोट्स, प्रोमिसरी मतलब जो प्रॉमिस करते हो किसी चीज से रिलेटेड, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज किया जाने लगा, विच फॉर्म्ड एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स फॉर द 12th century onwards। और ये जो नोट्स स्टिक्स थी, ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स का एसेंशियल पार्ट बन गया 12th century के बाद। इन दिस इंस्टेंस द टैलीज were pieces of hazelwood about 6 to 9 inches long and up to an inch thick। ये लकड़ियां क्या होती थी? हेजलवुड की लकड़ियां होती थी 6 से 9 इंच लंबी और 1 इंच चौड़ी, मतलब थिक होती थी। उनकी गर्थ, उनकी थिकनेस लगभग 1 इंच जितनी होती थी। Notches of varying sizes and types were cut in the tallies, each notch representing a fixed amount of money। और अलग अलग साइजेस और टाइप्स के नोचेस काटे जाते थे उस लकड़ी पे, और हर नोच फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी बताता था। और उन नोचेस की जो विड्थ थी, मतलब वो बताती थी कि उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे कि मान लो कि द नॉच ऑफ 1000 यूरो, सॉरी, पाउंड्स, द नॉच ऑफ 1000 pounds was as large as the width of a hand। कि मतलब 1000 pounds का नोच बताना था तो वो कम से कम एक हाथ जितना चौड़ा होता था। 400 pounds as large as the thickness of a thumb। एक अंगूठी की थिकनेस जितना 100 pounds होता था, और छोटी उंगली की थिकनेस जितना 20 pounds होता था। जब एक लोन लेना होता था, अप्रोप्रिएट नोचेस बनाए जाते थे, कट किए जाते थे, और स्टिक को हाफ में काटा जाता था, 2 पीसेस में, ठीक है। और नोचेस, और वो जो नोचेस थे वो हर सेक्शन में बनाए जाते थे, मतलब दोनों सेक्शन में जो 2 पीसेस काटे जाते थे, उस लकड़ी के दोनों पीसेस बनाए जाते थे, और एक पीस जिसको लोन दिया उसको दे दिया जाता था। द डेप्टर केप्ट 1 पीस, जिसने लोन लिया वो एक पीस रखता था, एक्स चेकर दूसरा पीस रखता था, ताकि ट्रांजैक्शन आसानी से वेरीफाई हो सके बाय फिटिंग द टू हाफ्स टुगेदर। मतलब अगर किसी ने लोन लिया और उसको वापस करने हैं पैसे, तो वो जब पैसे पैसे वापस करने आता था तो लकड़ी देता था, और एक्स चेकर लकड़ी को जोड़ता था टू हाफ्स टुगेदर एंड नोटिसिंग वेदर द नोचेस कोइंसाइड, और नोचेस कोइंसाइड कर रहे हैं नहीं, उसको नोटिस करके वो लोन वापस ले लेता था और उसका लोन खत्म हो जाता था जिसने लोन लिया होता था। प्रिज्यूमेबली व्हेन द टू हाफ्स हैड बीन मैच्ड, द एक्सचेकर डिस्ट्रॉयड सेक्शन। तो जब 2 हाफ मैच हो जाते थे तो एक्सचेकर उन दोनों लकड़ियों के पीसेस को जला देता था या उसको डिस्ट्रॉय कर देता था, और उसको मतलब और स्मूथ बना देता था ताकि वो जो नोचेस काटे हैं वो गायब हो जाए। और यहाँ से ही हमारा एक्सप्रेशन आया कि हमारा अकाउंट टैली हो गया, यानी हमारी लकड़ियां टैली हो गई, इसलिए ये एक्सप्रेशन आ गया कि हमारे अकाउंट टैली हो गए। बट रिटेन द डेप्टर सेक्शन फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड। लेकिन जो डेप्टर का सेक्शन था, जिसने लोन लिया था, उसका जो लकड़ी का पीस था उसको रख लेता था, ताकि फ्यूचर में बता सके कि हाँ इसने ये लोन लिया था ऐसा। Obstinate adherence to custom kept this wooden accounting system in official use long after the rise of banking institution and modern numeration, and had made its practice quietly obsolete। और हुआ ये कि जैसे जैसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन राइज होते गए, ये कस्टम वैसे ही रहा, वुडन अकाउंटिंग सिस्टम वैसे ही रहा, और भले ही मॉडर्न न्यूमरेशन सिस्टम आ गया लेकिन वुडन अकाउंटिंग सिस्टम वैसा ही रहा। It took an act of parliament which went into effect in 1826 to abolish the practice। 1826 में एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया जिसकी वजह से ये एक्ट अबॉलिश हुआ। In 1834, when the long accumulated tallies were burned in the furnaces that heated the House of Lords, the fire got out of hand, starting a more general conflagration that destroyed the old Houses of Parliament। मतलब
जब उन टैलीज इकट्ठी की हुई थी, जो छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठी की हुई थी, जब उनको 1826 के बाद उनको जलाया, 1834 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जलाया, तो आग काफी फैल गई। उससे पता चल रहा है कि मतलब काफी पुराने रिकॉर्ड्स रखे गए थे उन लकड़ियों के लिए। The English language has taken a note of the peculiar quality of the double tally stick. Formerly, if someone lent money to the Bank of England, the amount was cut on a tally stick, which was then split. इंग्लिश लैंग्वेज में भी इस डबल टैली स्टिक का मतलब नोट लिया हुआ है। ये वाली लाइन मुझे खैर खास समझ नहीं आई। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जब कोई बैंक ऑफ इंग्लैंड को पैसे देता था, कि एक टैली स्टिक में एक अमाउंट कट की जाती थी, और उसके बाद वो टैली स्टिक जिसने पैसे दिए हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड को, उसको दिया जाता था। बैंक जो अपने पास लकड़ी रखता था उसे फॉइल बोलते थे, और जो दूसरा हाफ जो उसको दिए हैं, जिसने मतलब बैंक को पैसे दिए थे, उसको जो लकड़ी दी जाती थी उसे स्टॉक बोला जाता था। और इसलिए जिसके पास वो स्टॉक वाली लकड़ी होती थी उसे स्टॉक होल्डर बोला जाता था, और बोला जाता था कि उसने एक बैंक स्टॉक ऑन किया है, हैविंग द सेम वर्थ एज पेपर मनी इशूड बाय द गवर्नमेंट। और स्टॉक की वो जो बैंक स्टॉक था, वो जो लकड़ी थी, उसकी सेम वैल्यू है पेपर मनी की, जो गवर्नमेंट इशू कर रही है। When the holder would return, the stock was carefully checked and compared against the foil in the bank's possession. और जब वो स्टॉक होल्डर उस पैसे को वापस करता था, स्टॉक को केयरफुली चेक किया जाता था और फॉइल के साथ कंपेयर किया जाता था। फॉइल मतलब जो बैंक के पास लकड़ी थी। और अगर वो मान जाते थे कि वो लकड़ी सेम है, तो जो ओनर का पीस था, उसके बदले उस ओनर को करेंसी मिल जाती थी, पैसे मिल जाते थे जो उसने बैंक को दिए थे। एज अ रिटन सर्टिफिकेट दैट वाज प्रेजेंटेड फॉर रिमिटेंस एंड चेक अगेंस्ट इस सिक्योरिटी लेटर केम टू बी कॉल्ड अ चेक। और एक रिटर्न सर्टिफिकेट जो ये इंश्योर करता था कि आपको पैसे मिलेंगे, उसे चेक बोला जाता था। मतलब एक प्रूफ के लिए, एक सॉर्ट ऑफ मतलब बताने के लिए कि हाँ आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, ऐसा चेक बोला जाता था। यूजिंग वुडन टैलीज फॉर records ऑफ obligations was most common in most European countries and continued there until fairly recently. और वुडन टैलीज का जो सिस्टम था वो यूरोपियन कंट्रीज में चलता रहा, और काफी लंबे टाइम तक चलता रहा, और लगभग अभी तक चलता रहा, अभी ही खत्म हुआ है। Early in this century, for instance, in some remote valleys of Switzerland, milk sticks provided evidence of transactions among farmers who owned cows in a common herd. और लकड़ियों का ये जो वुडन टेलिंग सिस्टम था, ये स्विट्जरलैंड में भी अभी मतलब रिसेंट तक यूज किया जाता था, जिसमें मिल्क स्टिक्स यूज की जाती थी किसानों के अमंग। तो उसमें क्या होता था, किसानों का एक चीफ हर्ड्समैन होता था। ईच डे द चीफ हर्ड्समैन वुड carve a 6 or 7 sided rod of ashwood, coloring it with a red chalk. चीफ हर्ड्समैन क्या करता था, हर रोज एक एशवुड की लकड़ी लेता था, 6 से 7, जिसकी 6 से 7 साइड्स होती थी, और हर साइड हर किसान के लिए होती थी, और आसानी से पता लगा सकें कि वो कितने मार्क्स हैं, मतलब वो मार्क लगा भी है या नहीं। और हर किसान के पर्सनल सिंबल के नीचे हर्ड्समैन क्या करता था कि उसकी गाय ने कितना दूध दिया, उसकी उसकी गाय से कितना मक्खन आया, बटर आया, और कितना पनीर आया, वो काउंट करता था, और उनको उस मतलब लकड़ी पे मार्क कर देता था हर किसान के सिंबल के नीचे। एवरी संडे आफ्टर चर्च ऑल पार्टीज वुड मीट एंड सेटल द अकाउंट्स। और हर संडे चर्च जाने के बाद वो अपने अकाउंट सेटल कर लेते थे कि हाँ भाई ये मतलब इस गाय मेरी गाय को कितना मुनाफा आया, तो मैं अपने पास रखूंगा ये सारा प्रॉफिट वगैरह। Tally sticks, in particular, double tallies, were recognized as legally valid documents until well into the 1800s. डबल टैलीज मतलब लकड़ी को दो पार्ट्स में काटना, और एक पार्ट किसी के पास रखना, एक पार्ट अपने पास रखना, ताकि मैच करने के काम आ सके। वो जो टैली सिक्स वाला सिस्टम था, वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स की तरह यूज किया जाता था 1800 तक। फ्रांसिस फर्स्ट मॉडर्न कोड ऑफ लॉ, द कोड सिविल, प्रोमलगेटेड फ्रांस का जो फर्स्ट मॉडर्न कोड ऑफ लॉ था, उस जो कोड सिविल था, उसमें कुछ नेपोलियन ने कुछ ऐसे लिखवाया था कि दो जो टेलिस्टिक्स होंगी विच मैच देयर स्टॉक्स हैव द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पर्सन्स हु आर accustomed टू डिक्लेयर इन दिस मैनर द डिलीवरीज दे हैव मेड और रिसीव्ड। कि टेलिस्टिक्स अगर उनके स्टॉक से मैच हो जाएं, तो फिर वो उन लोगों को फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देती थी जिनके पास वो स्टॉक्स वाली टेलिस्टिक्स हैं,
जिसकी वजह से वो अपनी डिलीवरीज जो उन्होंने दी हैं या उन्होंने ली हैं उनको डिक्लेयर करने के वो काबिल बन सकें। कि मतलब टेलिस्टिक्स नेपोलियन के राज में भी यूज किया जाता था, वहां भी टेलिस्टिक्स का काफी मतलब टेलिस्टिक्स सिस्टम काफी यूज किया जाता था। The variety in practical methods of telling is so great that giving any detailed account would be impossible here। कि मतलब वैरायटी इतनी ज़्यादा है ना टेलिंग सिस्टम की, ये तो मतलब एक छोटा सा एग्जांपल था, ब्रिटिश एक्सचेकर फाइल्स या फ्रांस में नेपोलियन यूज़ कर रहा है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है और इसकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है। प्रैक्टिकल यूज़, टेलिंग का प्रैक्टिकल यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो इसकी डिटेल अकाउंट देना, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देना इम्पॉसिबल है। But the procedure of counting both days and objects by means of knots tied in cords has such a long tradition that it is worth mentioning। लेकिन धागे पे गांठ बांधने का सिस्टम इतना लंबा ट्रेडिशन रहा है कि उसको बताना भी एक मतलब उसको भी बताना चाहिए, उसका भी पता होना चाहिए। The device was frequently used in ancient Greece and we find reference to it in the work of Herodotus। और ये मतलब ये जो नोट्स वाला जो सिस्टम था ये ग्रीस में यूज किया जाता था और इसको हेरोडोटस के वर्क में भी पाया जाता है, इसका रेफरेंस। Commenting in his history, he informs us that the Persian king Darius handed the Ionians a knotted cord to serve as a calendar। मतलब उन्होंने हिस्ट्री में कमेंट करते हुए ये कहा है कि पर्शियन किंग डेरियस ने आयोनियंस को एक नोटेड कोड दी थी जिसको कैलेंडर की तरह यूज करते थे। The king took a leather thong and tying 16 knots in it, called together the Ionian tyrants and spoke thus to them: Untie every day one of the knots. If I do not return before the last day to which the knots will hold out, then leave your station and return to your several homes। तो राजा ने क्या किया, राजा एक धागा पकड़ाता था जिसपे 60 गांठें लगी होती थी और वो बोलता था कि ये 60 गांठों वाले धागे को अपने पास रखो और हर दिन के लिए एक गांठ खोल दो। अगर मैं इन दिनों के भीतर वापस नहीं आया, अपने स्टेशन छोड़ देना और अपने अपने घर वापस चल जाना था। तो दिन काउंट करने के लिए भी यूज किया जाता था। और ये जो आप ये जो बॉन की जो पिक्चर्स देख रहे हो, ये वुल्फ बॉन, पैलियोलिथिक वुल्फ बॉन पिक्चर्स हैं जिसको टैलिंग के लिए यूज किया जा सकता है। और इधर आप देख सकते हो कि इन्होंने ग्रुपिंग कैसे की हुई है और ये आप काउंट कर सकते हो, इसको आप मैच भी कर सकते हो, ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हो इनके बारे में। अब आती है द पेरुवियन क्यूपस नॉट्स एस नंबर्स। क्विपूज क्विपूज मैं बताता हूँ कि क्या वर्ड है। नॉट्स एस नंबर्स, नॉट्स एस नंबर्स मतलब गांठों को नंबर की तरह काउंट करना। इन द न्यू वर्ल्ड द नंबर स्ट्रिंग इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय द नोटेड कॉर्ड्स कॉल्ड क्विपूज ऑफ द इनकाज ऑफ पेरू। जो पेरू के जो इनकाज थे, इनकन लोग थे, वो क्या करते थे कि नोटेड कोड यूज करते थे और उनका नाम उन्होंने रखा था क्विपूज। दे वर ओरिजिनली अ साउथ अमेरिकन इंडियन ट्राइब। वो एक ओरिजिनली एक साउथ अमेरिकन इंडियन ट्राइब थे और अ कलेक्शन ऑफ किंडर ट्राइब्स लिविंग इन द सेंट्रल इंडियन एंडियन माउंटेनियस आइलैंड्स। और वो एक मतलब ऐसी ट्राइब थे जो सेंट्रल इंडियन माउंटेनियस हाईलैंड्स में रहते थे। जैसे जैसे एक्सपेंशन होती रही और वो मतलब जंग जीते रहे, उनका जो रूल था वो काफी फैल गया। उनका रूल फैला टू द कोस्टल एंड माउंटेनियस रीजन्स ऑफ प्रेजेंट डे इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया एंड द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ चिली एंड अर्जेंटीना। इन सारे मतलब नेशंस के कुछ कुछ पार्ट्स तक, और कुछ नेशंस जैसे कि पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर और अर्जेंटीना, इनके सारे सारे एरियाज इन्होंने कवर किए थे। जो इनकास ऑफ पेरू थे, इन्होंने एक्सपेंशन और वॉरफेयर से अपना किंगडम एक्सपैंड करते रहे और जंग जीतते रहे, जिसकी वजह से इनका किंगडम इतना एक्सपैंड हुआ। द इनकास बिकेम रिनाउंड फॉर देयर इंजीनियरिंग स्किल्स कंस्ट्रक्टिंग स्टोन टेम्पल्स एंड पब्लिक बिल्डिंग्स ऑफ ग्रेट साइज। और इनकास अपने स्किल्स जो मतलब जो यूज करते थे अपने स्किल्स को पत्थरों के मंदिर बनाने के लिए और पब्लिक बिल्डिंग्स बनाने के लिए। और इनके जो पत्थरों के मंदिर और पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी वो काफी बड़ी होती थी, तो इसलिए जाने जाने लगे, इनकी इंजीनियरिंग स्किल्स काफी पहचानी जाने लगी। A striking accomplishment was their creation of a vast network of roads and bridges linking the far far-flung parts of the empire। मतलब और इनकी एक ऐसी इनकी स्ट्राइकिंग अकम्पलिशमेंट, इनकी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने एक बहुत वैस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स बनाए थे। 14,000 मील कितना होता है, 14,000 मतलब कम से कम 21,000 किलोमीटर लंबे रोड्स इन्होंने बनाए। और रोड्स और ब्रिजेस जो कि मतलब एम्पायर के दूर दूर के पार्ट्स को जोड़े रखे।
The isolation of the Incas from the horrors of the Spanish conquest ended early in 1532 when 180 conquistadors landed in northern Peru. जब 180 स्पेनिश कॉन्किस्टाडोर्स जो स्पेनिश लड़ाके थे, जब वो वहां पहुंचे 1532 में, तो इनकाज का जो किंगडम था वो लगभग मतलब खत्म ही हो गया, उनका रूल ही खत्म हो गया। जैसे ही 1532 ईयर एंड हुआ, द इन्वेडर्स हैड सीज्ड द कैपिटल सिटी ऑफ कुज्को एंड इम्प्रिजन द एम्परर। साल के खत्म होते होते तो स्पेनिश इन्वेडर्स ने कुज्को कैपिटल सिटी में इनकन्स के एम्परर को इम्प्रिजन कर लिया। स्पेनियार्ड्स ने अपना वे ऑफ लाइफ उन लोगों पे इम्पोज किया, अपना कल्चर बताने लगे कि हम ऐसे पूजा करते हैं, हम ऐसे काम करते हैं, ऐसे साफ सफाई होती है, ऐसे सब काम होते हैं। तो उन्होंने अपना वे ऑफ लाइफ उन पे इम्पोज किया, जिसकी वजह से लगभग 40 साल के भीतर भीतर इनका कल्चर डिस्ट्रॉय हो गया। When the Spanish conquerors arrived in the 16th century, स्पेनिश कनकरर्स जब 16th सेंचुरी में आए, 16वीं सदी में आए, दे ऑब्जर्व दैट ईच सिटी इन पेरू हैड एन ऑफिशियल ऑफ द नोट्स। और पेरू की हर सिटी में नोट्स का एक ऑफिशियल होता था जो कॉम्प्लेक्स अकाउंट को मेंटेन करता था बाय मींस ऑफ नोट्स एंड लूप्स इन स्टैंड्स ऑफ वेरियस कलर्स। अलग अलग कलर्स के धागों पे नोट्स और लूप्स को यूज करके वो कॉम्प्लेक्स अकाउंट्स मेंटेन करता था, परफॉर्मिंग ड्यूटीज नॉट अनलाइक दोज ऑफ सिटी ट्रेजरर ऑफ टुडे। और वो उसकी ड्यूटीज भी बिल्कुल आज के सिटी ट्रेजरर की तरह ही थी। द क्विपो कीपर्स, यानी मतलब क्विपो मतलब उन धागों का कीपर जो जिन पे गांठें बंधी होती थी, रिकॉर्डेड ऑल ऑफिशियल ट्रांजैक्शन कंसर्निंग द लैंड एंड सब्जेक्ट्स ऑफ द सिटी एंड सबमिटेड द स्ट्रिंग्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कुस्को। तो जो क्विपो कीपर जो होते थे, जो ऑफिशियल होते थे, धागों वाले ऑफिशियल होते थे, वो ऑफिशियल ट्रांजैक्शन जमीन और लोगों को लेकर जो ऑफिशियल ट्रांजैक्शन होती थी वो धागों पे करते थे और धागों को सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कर देते थे। द क्विपूज वर मेंटेन्ड इन द इनका एम्पायर बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दीज नोट्स नो सिस्टम ऑफ राइटिंग वाज एवर डेवलप्ड देयर। क्विपूज को इनका एम्पायर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, क्योंकि इनके अलावा लिखने का कोई सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था ना वहाँ पे कैलकुलेशन ही इनके बेसिस पे होती थी। द क्विपो वॉज मेड ऑफ अ थिक मेन कोड। क्विपो में क्या होता था, एक मेन कोड होती थी, मोटी मेन रस्सी होती थी, या फिर उसको क्रॉस बार बोलते हैं। और क्या होता था कि उस मेन रस्सी से छोटी छोटी रस्सियां लटकी होती थी, अलग अलग लेंथ की, और उसमें अलग अलग कलर की अलग अलग लेंथ अलग अलग कलर की रस्सियां लटकी होती थी। जैसे कि आप पोछा लेते हो तो पोछे में जैसे धागे लटके होते हैं बिल्कुल वैसे, या फिर आप तार पे कपड़े सुखाते हो बिल्कुल वैसे रस्सियां लटकी होती थी एक मोटी रस्सी में। each of the each of the pendant strings represented a certain item to be tallied। और हर एक जो लटका धागा होता था वो किसी आइटम को टैली करने के लिए यूज किया जाता था। वन माइट बी यूज टू शो द नंबर ऑफ शीप फॉर इंस्टेंस, अनदर फॉर गोट्स एंड द थर्ड फॉर लैम्स। हो सकता है कि एक धागा भेड़ों के लिए, एक धागा बकरियों के लिए और एक धागा मेमनों के लिए यूज किया गया। The notes themselves indicated numbers. Notes numbers बताता था, the values of which varied according to the type of knot used and its specific position on the strand। और नोट्स पहले नंबर बताते थे और वो किस तरह लगे हुए हैं वो बताता था कि वो कौन सा नंबर है। डेसिमल सिस्टम यूज किया गया था, विद द नॉट रिप्रेजेंटिंग यूनिट्स प्लेस नियरेस्ट द बॉटम। टेंस उनसे ऊपर आते थे, हंड्रेड्स उनसे ऊपर, और सौ उनसे। मतलब होता क्या था कि सबसे नीचे टेंस वाला वंस वाला चलता था, उससे ऊपर टेंस वाला नंबर लिखा जाता था, उससे ऊपर हंड्रेड्स वाला, और ऐसे सौ ऑन सौ चला जाता था। बंचेस ऑफ कॉर्ड्स वर टाइड ऑफ बाय सिंगल मेन थ्रेड, अ समेशन कॉर्ड। और ये जो सारी थी जो एक उससे लगी होती थी, एक मेन मोटी कॉर्ड से, उसको फिर बांध दिया जाता था। और क्या बोलते फिर उस मेन रस्सी पे जितनी कांटें बंधी होती थी उससे पता चल जाता था कि कितनी रस्सियां बंधी हुई हैं, कि कितने टैलीज उसमें मेंटेन किए गए हैं। bunches sorry, the range of possibilities for numerical representation in the quipus allowed the Incas to keep incredibly detailed administrative records। कि किस तरह वो गांठें बांधते थे, उनकी उन्होंने न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन बताई थी, जिसकी वजह से उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स रखने का जो तरीका था वो बहुत ही इनक्रेडिबली डिटेल्ड था, कि उनके पास हर चीज़ की डिटेल थी, क्योंकि उनको पता था
कि गांठें उन्होंने किस तरह बांधनी है। 4 गांठें बांधेंगे इकट्ठी तो मतलब वो 4 को रिप्रेजेंट करेगा। 2 गांठों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप होगा तो यानी वो 0 होगा। ऐसे-ऐसे। डिस्पाइट देयर इग्नोरेंस ऑफ द रिटन वर्ड, मतलब उन्हें रिटन वर्ड के बारे में नहीं पता था, उनको लिखने के बारे में नहीं पता था, उनको मार्क्स के बारे में नहीं पता था, कि नोचेस के बारे में नहीं पता था कि कैसे मार्क लगाने हैं, कैसे नोचेस करने हैं, कि लिखना भी कैसे है। लेकिन फिर भी वो नॉलेज ना होने के बावजूद वो इतना डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड रखते थे कि मतलब मानना पड़ेगा कि कैसे वो इतने चालाक, इतने क्लेवर थे। More recent 1872 evidence of notes as a counting device occurs in India, और ऐसा ही एविडेंस हमें इंडिया में भी मिलता है। कुछ सेंट्रल हेड्समैन जो पढ़े लिखे नहीं थे वो धागों पे रस्सियां बांधते थे 4 डिफरेंट कलर की, तो ताकि वो अप टू डेट सेंसस बता सके। वो अपने मतलब लोगों को काउंट करने के लिए वो मतलब धागों पे नोट्स बांधते थे। टू एप्रिशिएट द क्विपू फुली वी शुड नोटिस द न्यूमेरिकल वैल्यूज रिप्रेजेंटेड बाय द टाइड नोट्स। क्विपू को ढंग से अप्रिशिएट करने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि वो न्यूमेरिकल वैल्यूज कौन सी आती थी उन नोट्स पे। 3 टाइप्स ऑफ नोट्स वर यूज, 3 तरह की नोट्स यूज की जाती थी। अ फिगर 8 नोट, 8 8 तरह का 8 के शेप की जो गांठ बांधी जाती थी उसे 1 माना जाता था। एक लंबी नोट, अ लॉन्ग नोट डिनोटिंग वन ऑफ द वैल्यूज 2 थ्रू 9, एक लंबी नोट मतलब नोट को इकट्ठा 3-4 नोट्स को इकट्ठा बांधा जाता था ताकि 2 से 9 के बीच में नंबर्स काउंट किए जा सकें डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ट्विस्ट इन द नोट। एंड अ सिंगल नोट आल्सो इंडिकेटिंग 1, और एक सिंगल नोट भी 1 बताती थी। The figure 8 knot and long knot appear only in the lowest units position on a chord। जो फिगर 8 नोट है और जो लंबी नोट है वो लोएस्ट पोजीशन पर ही आती थी धागों पे। While clusters of single notes can appear in the other space position, मतलब सिंगल नोट एक एक अकेली अकेली गांठें मतलब उनका क्लस्टर टेंस की पोजीशन से ऊपर आता था और उनको इक्वली स्पेस किया जाता था। Because pendant chords have the same length, an empty position would be apparent on comparison with adjacent chord। जब 2 एडजेसेंट धागे एक साथ लगे होते थे और हमें ये पता करना होता था कि एक धागे में 0 है या दूसरे में नहीं, तो हम ये स्पेसिंग देखते थे कि मतलब एक के 100 की स्पेसिंग दूसरे के 100 की स्पेसिंग से देखते थे कि क्या दोनों एक लेवल पे हैं कि एक दूसरे धाग मतलब एक धागा उससे ऊपर नीचे है। जब वो ऊपर नीचे होता था तो हम ये पता लगा लेते थे कि किन्हीं नंबर्स के बीच में 0 आ रहा है। The figure 8 knot and okay, because pendant chords have the same length and empty position would apparent on comparison with adjacent chords. Also, the reappearance of either a figure 8 or long knot would point out that another number is being recorded on the same chord। और फिगर 8 या लॉन्ग नोट जब रिपेयर होती थी तो ये बताता था कि कोई दूसरा नंबर रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड किया जा रहा है सेम कोड पे। रिकॉलिंग दैट असेंडिंग पोजीशंस कैरी प्लेस वैल्यू फॉर सक्सेसिव पावर्स ऑफ 10, कि मतलब असेंडिंग पोजीशन प्लेस वैल्यू बता रही है सक्सेसिव पावर ऑफ 10। जैसे कि सबसे नीचे है यूनिट्स वैल्यू, उससे नीचे टेंस, फिर उसके ऊपर 100, उसके ऊपर 100। हम मान के चलते हैं कि एक कोड ऐसे दी है कि एक लंबी नोट है पहले जिसमें 4 ट्विस्ट लगे हैं, फिर 2 सिंगल नोट्स लगी हैं, एक बीच में खाली स्पेस है, फिर 7 क्लस्टर्ड सिंगल नोट्स लगी हैं मतलब जुड़ी हुई सिंगल नोट्स लगी हैं, एंड 1 सिंगल नोट और एक सिंगल नोट लगी है। तो वो कुछ इस तरह बनेगा, जो 4 सिंगल नोट होंगी वो 4 बताएगा, जो 2 नोट्स होंगी 2 सिंगल नोट्स होंगी वो 2 बताएगा, जो खाली स्पेस होगा वो 0 बताएगा, 7 क्लस्टर्ड सिंगल नोट्स होंगी वो 7 बताएगा, और 1 सिंगल नोट 1 बताएगा। तो उससे नंबर जोड़ के बन रहा था 17024। तो सिर्फ एक ही धागे पे हमने ये नोट्स बना के ये पता लगा लिया कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स थी, और इसी वजह से वो इनका जो पैरू थे वो काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रखते थे। ऐसा ही सिमिलरली एक और न्यू वर्ल्ड कल्चर था मायन कल्चर, और इसी प्लेस वैल्यू न्यूमरेशन सिस्टम को यूज करता था। द पीपल ऑक्यूपाइड अ ब्रॉड एक्सपेंस ऑफ टेरिटरी एम्ब्रेसिंग सर्दर्न मैक्सिको एंड पार्ट्स ऑफ व्हाट इज टुडे ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर एंड होंडुरास। मतलब ये इनका एम्पायर था सदर्न मैक्सिको में, ग्वाटेमाला में, एल साल्वाडोर में और होंडुरास में। मायन सिविलाइजेशन लगभग 2000 साल पहले तक रही है, विद द टाइम ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट पावरिंग बीइंग द पीरियड ऑफ 300 टू 900 एडी। और इनका जो रूल था उस रूल की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा थी 300 टू 900 एडी।
A distinctive accomplishment was its development of an elaborate form of hieroglyphic writing using about 1000 glyphs. और इनकी जो सबसे यूनिक अचीवमेंट थी वो ये थी कि इन्होंने इलेबोरेट सिस्टम बनाया था हायरोग्लिफिक राइटिंग का, जिसमें लगभग 1000 ग्लिफ्स यूज किए जाते थे। ग्लिफ्स यानी सिंबल्स। द ग्लिफ्स आर समटाइम्स साउंड बेस्ड एंड समटाइम्स मीनिंग बेस्ड। ग्लिफ्स का साउंड से कुछ रिलेशन होता था या फिर उनका कुछ मतलब होता था। द वेस्ट मेजोरिटी ऑफ दोज दैट हैव सर्वाइव्ड हैव येट टू बी डिसाइफर्ड। और काफी ज्यादा ग्लिफ्स ऐसे हैं जो बच गए हैं और उनका भी पता लगाना बाकी है। आफ्टर 900 AD, the Mayan civilization underwent a sudden decline. 900 AD के बाद मायन सिविलाइजेशन का अचानक ही पतन हो गया, जिसका पता ना चला। और इनकी पॉपुलर सिटी जिनमें मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी वो अबेंडन हो गई, मतलब उन मायन लोगों ने छोड़ दी। द कॉज ऑफ दिस कैटास्ट्रॉफिक एक्सोडस इज अ कॉन्टिन्यूइंग मिस्ट्री, कि मतलब ये अचानक पतन हुआ कैसे, वो अभी तक एक राज है। डिस्पाइट स्पेकुलेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, भले ही उस टाइम नेचुरल डिजास्टर की कोई एक्सप्लेनेशन दी हो या फिर कोई बीमारियों का कोई प्रूफ दिया हो या फिर किसी जंग की वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा हो, what remained of the traditional culture did not succumb easily or quickly to the Spanish conquest. और बाकी जो उनका ट्रेडिशनल कल्चर बचा था वो इतनी आसानी से गायब नहीं हुआ। स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर्स ने वहां पे भी अपना हक जमाया, लेकिन उनके ट्राई करने के बावजूद वो इतनी आसानी से गायब नहीं हुआ। स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट हुआ था लगभग 1500 से। इट वाज अ स्ट्रगल ऑफ रिलेंटलेस ब्रुटैलिटी स्ट्रेचिंग ओवर नियरली अ सेंचुरी बिफोर द लास्ट अनकंकर्ड मायन किंगडम फेल इन 1597। मतलब 1500 से स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट हुआ और लगभग पूरा 100 साल तक, लगभग 100 साल तक ये चला। और 1597 के एंड तक आखिरी मायन किंगडम ने अपनी हार मान ली। द मायन कैलेंडर ईयर वाज कंपोज्ड ऑफ 365 days divided into 18 months of 20 days each. मायन कैलेंडर में क्या था, 365 दिन थे और उन 365 दिनों को 18 महीनों में डिवाइड किया गया था और हर महीने में 20 दिन थे। और जब 20 गुना 18 करते थे तो 360 आता है, जिससे पता चलता है कि 5 दिन एक्स्ट्रा बच जाते थे। दिस लेड टू द एडॉप्शन ऑफ अ काउंटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन 20, अ विगेसिमल सिस्टम। मतलब 20 पे काउंट करने वाला सिस्टम अडॉप्ट किया गया। नंबर्स वर एक्सप्रेस सिंबॉलिकली इन टू फॉर्म्स। नंबर्स को टू फॉर्म्स में सिंबॉलिकली एक्सप्रेस किया जाता था। प्रीस्टली क्लास एम्प्लॉयड इलेबोरेट ग्लिफ्स ऑफ ग्रोटेस्क फेसेस ऑफ डियटीज टू इंडिकेट द नंबर्स 1 through 19। मतलब प्रीस्टली क्लास जो काफी ऊंची क्लास के जो लोग थे, उन्होंने 1 से 19 तक इलेबोरेट ग्लिफ्स बनाए थे, भगवानों की शक्लें बनाई थी 1 से 19 नंबर बताने के लिए। These were used for dates in carved commemorating notable events। और नोटेबल इवेंट्स को बताने के लिए इन ग्लिफ्स को यूज किया जाता था। ये था ऊंचे लोगों के लिए, प्रीस्टली क्लास लोगों के लिए। जो कॉमन पीपल थे वो सेम नंबर्स को कुछ इस तरह रिकॉर्ड करते थे कि वो बार्स और डॉट्स का कॉम्बिनेशन यूज करते थे। देयर अ शॉर्ट हॉरिजॉन्टल बार रिप्रेजेंटेड 5 एंड अ डॉट 1। मतलब एक हॉरिजॉन्टल बार 5 बताता था और एक डॉट 1 बताता था। अ पर्टिकुलर फीचर वाज अ स्टाइलाइज्ड शेल। और एक फीचर ऐसा था कि एक स्टाइलाइज शेल यूज किया जाता था जीरो की फॉर्म में। दिस इज द अर्लीस्ट नॉन यूज ऑफ मार्क फॉर दैट नंबर। द सिंबल। और अगर आप इस जगह देखें, मतलब अपनी बुक में या फिर मैं जो प्रेजेंट कर रहा हूँ इसमें देखें, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जीरो के लिए शेल यूज किया गया है, नंबर्स के लिए डॉट यूज किया गया है, और 5 या 5 से बड़े नंबर्स के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन यूज की गई है। The symbols representing numbers larger than 19 were arranged in a vertical column with those in each position moving upward। मतलब जो 20 से बड़े नंबर होते थे उनको एक वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया जाता था, मूविंग अपवर्ड। मल्टी विद दोज इन ईच पोजीशन, मतलब वर्टिकल कॉलम में अरेंज करके उनको ऊपर ऊपर एक के ऊपर लिखा जाता था। मल्टीप्लाइड बाय सक्सेसिव पावर्स ऑफ 20। और उस हर एक नंबर को 20 की पावर से मल्टीप्लाई किया जाता था। दैट इज बाय 1, मतलब 20 रेस पावर 0, फिर 20, फिर 400, फिर 8000, फिर 1,60,000 एंड सो ऑन सो। और अ शेल प्लेस्ड इन अ पोजीशन वुड इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ बार्स एंड डॉट्स देयर। मतलब अगर एक शेल रख देते थे, शेल का या फिर ग्लिफ बनाते थे, तो बार्स और डॉट्स की एब्सेंस बताता था, जिसके मतलब 0। In particular, the number 20 was expressed by a shell at the bottom of the column and a single dot in the second position। कि अगर 20 बताना हो तो सब यूनिट प्लेस में शेल रखा जाता था ताकि वो 0 बताए, और टेंस प्लेस में मतलब क्या बोलते
और सॉरी, टेंस नहीं, विगेडेसिमल प्लेस में, मतलब दूसरी प्लेस में एक डॉट लगाया जाता था, ताकि उसको ऐसे लिखें 0 × 20⁻0 एंड 1 × 20⁻1। इससे 20 आ जाता था। फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर रिकॉर्डेड इन द सिस्टम, ऐसा ही एक एग्जाम्पल दिया गया है सिस्टम में, जैसे रिकॉर्ड किया गया था। लेट अस राइट द सिंबल्स हॉरिजॉन्टली रेदर देन वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक लिखने के बजाय हम वर्टिकल मतलब सॉरी, वर्टिकली लिखने के बजाय हम हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं। इसमें पहला नंबर कुछ ऐसा दिया है कि एक हॉरिजॉन्टल बार है, ऊपर 3 नंबर है, फिर बाद में एक शेल है, फिर बाद में 3 बार है, 2 नंबर है, फिर बाद में एक बार है और 2 नंबर। तो इससे पता चलता है कि पहला कौन सा होगा। पहला होगा जो सबसे राइट में लिखा है, वो पहला डिजिट आएगा। वो कुछ ऐसे आएगा कि मतलब एक बार और 2 नंबर है, यानी 5 और 6, 5 और 2 7 होनी चाहिए। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। लेफ्ट से काउंट करेंगे। ये कैसे किया है इन्होंने, मैं बताता हूँ। लेफ्ट साइड पहला नंबर लिया है इन्होंने कि 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 बनेगा। 8 × 20⁻0 प्लस शेल आ रहा है तो मतलब 0, प्लस 0 × 20⁻1 प्लस 3 बार है यानी 15, 15 और 2 डॉट्स हैं यानी 15, 1 16, 1 17, 17 × 20⁻2 और लास्ट जो नंबर आ रहा है वो एक हॉरिजॉन्टल बार और 2 डॉट्स यानी 7, 7 × 20⁻3 यानी 8000। जब इनको मल्टीप्लाई करके और सम करके जो नंबर बनेगा वो बनेगा 62,808। तो इस तरह कुछ नंबर्स को कैलकुलेट किया जाता था। नंबर्स को पहले इंटरप्रेट किया जाता था और उनको 20 की पावर में लिखा जाता था। ये हमारे लिए कैलकुलेट करना तो मुश्किल है, लेकिन उस राज्य में ये कैलकुलेशन काफी आसान थी। बिकॉज द मायन न्यूमरेशन सिस्टम वॉज डेवलप्ड प्राइमरली फॉर कैलेंडर रेकनिंग। और ये जो नंबर सिस्टम था मायन्स का, ये कैलेंडर काउंटिंग के लिए, कैलकुलेटिंग के लिए यूज किया गया था। तो एक छोटी सी वेरिएशन की गई थी। जो सिंबल था थर्ड पोजीशन में, वो 18 × 20 किया जाता था। थर्ड पोजीशन में 20⁻2 होता था ना, तो 20⁻2 की जगह 18 × 20, क्योंकि मायन कैलेंडर में 18 महीने होते थे और हर महीने में 20 दिन, इसलिए 18 × 20 किया जाता था। द आइडिया बीइंग दैट 360 वाज अ बेटर अप्रोक्सीमेशन टू द लेंथ ऑफ द ईयर। और ये आइडिया माना गया कि 360 जो था वो एक साल की लेंथ की बेटर अप्रोक्सीमेशन थी, इसलिए 20 × 20 करने की जगह 18 × 20 यानी 360 किया जाता था। The place value of each position therefore increased by 20 times the one before। और इसी तरह 1, 20, 400, 800, 1,60,000 होने के बजाय वो कुछ इस तरह करने लगे। 1, 20, फिर 20 × 18 360, 360 × 20 7200, और उससे भी 20 मल्टीप्लाई करोगे 1,44,000 एंड सो ऑन सो। अंडर दिस एडजस्टमेंट द वैल्यू ऑफ द कलेक्शन ऑफ सिंबल मेंशन अर्लियर वुड बी। और अगर हम पीछे जो ऊपर जो सिंबल्स बने थे, 4 सिंबल्स इकट्ठे इकट्ठे, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो 56,528 आएगी। Over the long sweep of history, it seems clear that progress in devising of efficient ways of retaining and conveying numerical information did not take place until primitive people abandoned the nomadic life। और ये जो मतलब एफिशिएंट वेज ऑफ मतलब ये जो प्रोग्रेस हुई कि मतलब उनको न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन रखनी थी या फिर अपने पास बचा के रखनी थी ताकि आगे वाली जो जनरेशन है उसका यूज कर सकें, वो तब तक नहीं रही जब तक लोगों ने अपनी नोमैडिक लाइफ, जो मतलब जानवरों का शिकार करना, उनको मार के खाना, फिर मतलब बाहर जंगलों में घूमते रहना, घर पे ना रहना, घर घर ना बनाना, जब तक ये लाइफ ना छोड़ी तब तक उन्होंने न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को बचा के रखने का तरीका नहीं ढूंढा था। Incised markings on bone or stone may have been adequate for keeping records when human beings were hunters and gatherers। जो इंसाइड मार्किंग थी एक पत्थर पे या हड्डी पे, वो एडिकेट थी, मतलब ठीक थी उनको अपना एक रिकॉर्ड रखने के लिए। बट द फूड प्रोड्यूसर रिक्वायर्ड एंटायरली न्यू फॉर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन जो खाना प्रोड्यूस करता था, खेती बाड़ी करता था, उसको नई फॉर्म चाहिए थी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन की। Besides, as a means of storing information, groups of marking on a bone would have been intelligible only to the person making them। लेकिन अगर हम ये देखें कि कोई हड्डी पे मार्किंग बना रहा है, वो सिर्फ उस पर्सन के लिए ठीक है ना जो सिर्फ शिकार करना चाहता है, और परहैप्स और
और वो सिर्फ उसके लिए फायदेमंद है जो उसके क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं। दैट द record was probably not intended to be used by people separated by great distance। और ये जो record थे, और ये मतलब माना जाता है कि ये मतलब जो दूर दूर रहते थे ये उनके लिए नहीं थे, ये सिर्फ क्लोज लोगों के लिए थे, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के लिए या खुद के लिए यूज किए जाते थे। Deliberate cultivation of crops, particularly cereal grains, and the domestication of animals began, so far as can be judged on the present evidence, in the Near East some 10,000 years ago. 10,000 years ago. Deliberate cultivation of crops की cultivation of crops हुई, cereal grains produce होना शुरू हुई, एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन, जैसे कि एक कुत्ते को रखा जाने लगा, भेड़ों को रखा जाने लगा, गायों को रखा जाने लगा दूध के लिए, मांस के लिए, ऐसे ऐसे। तो फिर मतलब ऐसे मतलब ये कुछ 10,000 साल पहले नियर ईस्ट में स्टार्ट हो गई। लेटर एक्सपेरिमेंट इन एग्रीकल्चर अकर्ड इन चाइना एंड इन द न्यू वर्ल्ड। और ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट मतलब एग्रीकल्चर के जो बाकी फर्दर एक्सपेरिमेंट थे वो चाइना में होते रहे और न्यू वर्ल्ड में आते रहे। A widely held theory is that a climatic change at the end of the last ice age provided the essential stimulus for the introduction of food production and a settled village existence। जैसे जैसे क्लाइमेटिक चेंज हुआ, लास्ट आइस एज खत्म हुई, वैसे वैसे एक तरह से स्टिमुलस मिल गया कि फूड प्रोडक्शन की जाए, क्योंकि ठंड में कहाँ फूड प्रोडक्शन होती है, बर्फ में कहाँ होती है, बर्फ में फसल खत्म हो जाती है। तो जैसे जैसे क्लाइमेटिक चेंज हुआ वैसे वैसे फूड प्रोडक्शन का एक तरह से मतलब एक वो स्पार्क सी मिल गई, चिंगारी सी मिल गई, इसलिए फूड प्रोड्यूस होने लगा और सेटल्ड विलेज भी एग्जिस्ट होने लगे। एज द पोलर आइस कैप बिगेन टू रिट्रीट, द रेन बेल्ट मूव नॉर्थवर्ड कॉजिंग द डेसिकेशन ऑफ मच ऑफ द नियर ईस्ट। जैसे पोलर आइस कैप पीछे हटती गई, रेन बेल्ट नॉर्थवर्ड मूव करती गई, जिसकी वजह से मतलब नियर ईस्ट में जो था वहाँ पे ऐसा मतलब क्लाइमेट हो गया कि कोई प्रोडक्शन कर सकें। द इंक्रीजिंग स्कार्सिटी ऑफ वाइल्ड फूड प्लांट्स एंड द गेम ऑन विच पीपल हैड लिव्ड फोर्स देम इज अ कंडीशन ऑफ सर्वाइवल। और जैसे जैसे वो मतलब हंट करते थे, शिकार करते थे, जानवर खत्म होते गए, तो उनको आना पड़ा, मतलब कल्टीवेशन पे आना पड़ा। इट बिकेम नेसेसरी टू काउंट वंस हार्वेस्ट एंड हर्ड। और ये जरूरी और ये बहुत जरूरी बन गया कि कोई अपने झुंड को काउंट करे और अपनी फसल को काउंट करे, क्योंकि खाना बहुत कम था उस टाइम पे और जानवर मिल नहीं रहे थे खाने के लिए, इसलिए ऐसे रहने लग पड़े। टू मेजर लैंड एंड टू डिवाइस अ कैलेंडर दैट वुड इंडिकेट द प्रॉपर टाइम टू प्लांट क्रॉप। और एक कैलेंडर बनाया जाने लगा, लैंड को मेजर किया जाने लगा ताकि क्रॉप्स को अच्छे से प्लांट किया जा सके, उनको अच्छे से कल्टीवेट किया जा सके, उनको अच्छे से काटा जा सके और उनको खाया जा सके। Even at this stage, the need for means of counting was modest, and tallying techniques, although slow and cumbersome, was still adequate for ordinary dealings। और इस स्टेज पर भी काउंटिंग जरूरी थी और टेलिंग टेक्निक्स थी, भले ही स्लो थी और मतलब टाइम लगता था, तो फिर भी उनको छोटे मोटे डीलिंग्स के लिए यूज किया जाता था। बट विद अ मोर सिक्योर फूड सप्लाई केम द पॉसिबिलिटी ऑफ कंसिडरेबल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। और जैसे जैसे कल्टीवेशन बढ़ती गई, फूड सप्लाई सिक्योर होता गया, क्योंकि हमें पता था फूड सप्लाई आएगा ही आएगा, हम काम करेंगे, हमें क्रॉप मिलेगी, हम खाएंगे खाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ, which meant that larger collection of objects had to be enumerated। और इस तरह लार्ज कलेक्शन को एन्यूमरेट किया जाने लगा। ज़्यादा पॉपुलेशन आई, ज़्यादा क्रॉप काउंट करनी पड़ी, इसकी वजह से ज़्यादा नंबर काउंट करने पड़े, और ज़्यादा लोग आके लोगों को काउंट करने के लिए भी ज़्यादा नंबर लाने पड़े। रिपीटिशन ऑफ सम फंडामेंटल मार्क टू रिकॉर्ड अ टैली लेड टू इनकन्वीनियंट न्यूमेरल रिप्रेजेंटेशन। कुछ फंडामेंटल मार्क्स की रिपीटिशन की जाने लगी टू इनकन्वीनियंट न्यूमेरल रिप्रेजेंटेशन, मतलब नंबर को रिप्रेजेंटेशन के लिए किन्हीं नंबर्स को रिपीट किया जाने लगा जो मतलब इनकन्वीनियंट था, समझ नहीं आ रहा था, विजुलाइज नहीं हो रहा था और कंफ्यूज हो जा रहे थे लोग। टीडियस टू कंपोज एंड डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, और मतलब आसानी से समझ नहीं आ रहा था। द डिजायर ऑफ विलेज टेम्पल एंड पैलेस ऑफिशियल टू मेंटेन मेटिकुलस रिकॉर्ड्स ये फर्दर impetus to finding new and more refined means of fixing a count in permanent और सेमी परमानेंट फॉर्म। तो जैसे ये कन्फ्यूजन बढ़ती गई तो लोगों का और टेम्पल का ये मतलब ज़रूरत बन गई कि एक नया सिस्टम ऐसा आ जाए कि मतलब परमानेंट काउंटिंग या थोड़ी सी परमानेंट, चाहे कितनी भी हो, ऐसा काउंटिंग सिस्टम आ जाए ताकि मतलब कंफ्यूजन ना हो। Thus, it was in the more elaborate life of those societies that rose to power some 6,000 years ago in the broad river valleys of the Nile
the Tigris, Euphrates, the Indus and the Yangtze that special symbols for numbers first appeared. और 6000 साल पहले ही ऐसा हुआ कि कुछ सोसाइटीज पावर में आई और उन्होंने स्पेशल सिंबल देना शुरू कर दिए नंबर्स को. From these, some of our most elementary branches of mathematics arose because the symbolism that would allow expressing large numbers in written numerals was an essential prerequisite for computation and measurement. और इसी तरह कुछ मतलब मैथमेटिक्स की एलिमेंट्री ब्रांचेस आ गई जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ऐसे ऐसे आ गई बिकॉज द सिंबलिज्म दैट वुड allow expressing large numbers in written numerals was an essential prerequisite for computation and measurement. क्योंकि हमें सिंबल्स मिल गए थे नंबर्स के लिए और वो ज़रूरी था कैलकुलेशन के लिए, कंप्यूटेशन के लिए वो ज़रूरी था. हमें सिंबल्स ढूंढने पड़ने थे नंबर्स के लिए, इसलिए हमें सिंबल्स मिल गए और उसकी क्या बोलते हैं हमें मैथमेटिक्स की एलिमेंट्री branches मिल गई. Through a welter of practical experiences with number symbols, people gradually recognized certain abstract principles. For instance, it was discovered that in the fundamental operation of addition, the sum did not depend on the order of the commands. Such discoveries were hardly the work of a single individual or even single culture, but more a slow process of awareness moving toward an increasingly abstract way. और जैसे जैसे मैथमेटिक्स की ब्रांचेज आई, एलिमेंट्री ब्रांचेज आई, लोगों ने सोचना शुरू किया और उन्होंने डिस्कवर किया कि ऑपरेशन ऑफ एडिशन कैसे काम करता है, कि मतलब क्या बोलते हैं सम इस पर नहीं डिपेंड करता है कि पहले पहले को दूसरे से जोड़ो या दूसरे को पहले से जोड़ो, वो सेम ही रहता है. फिर उसके बाद और और ये जो डिस्कवरीज थी ये एक इंडिविजुअल की नहीं थी या फिर एक कल्चर की नहीं थी, ये धीरे धीरे आता रहा. जैसे जैसे कल्चर, जैसे जैसे नई जनरेशन आती रही, ये आता रहा. We shall begin by considering the numeration systems of important Near Eastern civilizations. और हम शुरू करेंगे नियर ईस्टर्न सिविलाइजेशन से, इजिप्शियन और बेबीलोनियन से, फ्रॉम विच sprang the main line of our own mathematical development, जहाँ से हमारी मैथमेटिकल डेवलपमेंट की मेन लाइन आई. Number words are found among the word forms of the earliest extant writings of these people. इन लोगों की earliest writing से हमें number words मिल जाते हैं. Indeed, their use of symbols for numbers detached from an association with the objects to be counted. इनका जो numbers के लिए symbol use करना था वो ऑब्जेक्ट से डिटैच था, क्योंकि वो किन्हीं ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज नहीं किए गए थे. वो जनरलाइज्ड सिंबल्स थे, वो नंबर्स के लिए वो जनरलाइज्ड सिंबल्स थे. was a big turning point in the history of civilization, कि मतलब ऑब्जेक्ट से जुड़े हुए उन्होंने सिंबल नहीं बनाए थे, उन्होंने एक जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स की सिंबल बनाई थी जो मतलब हर किसी के लिए यूज किया जाता था. तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि आप किन्हीं भी कलेक्शन को काउंट करने के लिए आप सेम नंबर ऑफ सिंबल्स यूज कर रहे हो. इट इज मोर देन likely to have been a first step in the evolution of human supreme intellectual achievement, the art of writing. और ये हो सकता है कि ये बहुत बड़ा स्टेप रहा हो इंसान की एवोल्यूशन में और उसकी इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट में, जो कि था आर्ट ऑफ राइटिंग. क्योंकि तब आर्ट ऑफ राइटिंग स्टार्ट हो गया था, लोगों ने लिखना स्टार्ट किया था. बिकॉज द रिकॉर्डिंग ऑफ क्वांटिटीज केम मोर इजिली देन द विजुअल सिंबलाइजेशन ऑफ स्पीच, there is unmistakable evidence that the written languages of these ancient cultures grew out of their previously written number systems. अब बोला जाता अब ये बोल रहे हैं कि जो रिकॉर्डिंग क्वांटिटीज की जो रिकॉर्डिंग थी वो विजुअल सिंबलाइजेशन ऑफ मतलब जैसे हम बोल रहे हैं उसकी जो विजुअल सिंबलाइजेशन थी वो क्वांटिटी मतलब कैसे बताऊं, जो क्वांटिटीज की जो रिकॉर्डिंग है वो आप विजुअली अगर उसको रिमेम्बर कर रहे हो और उसको, तो फिर there is unmistakable evidence that the written languages of these ancient cultures grew out of their previously written number system. तो इससे साफ पता चलता है कि मतलब इनकी जो written languages थी वो previously written number system से काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई थी, कि मतलब वो विजुअलाइज कर ले रहे थे उस रिकॉर्डिंग को, कि मतलब किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना वो विजुअलाइज कर ले रहे थे उन सिंबल्स की हेल्प से. तो इसलिए वो प्रीवियस रिटर्न नंबर सिस्टम से काफ़ी आगे आ गए थे. और इससे अगला टॉपिक था नंबर रिकॉर्डिंग ऑफ द इजिप्शियंस एंड ग्रीक. ये आपसे आपने डिस्कस कर लिया. थैंक यू सो मच सर. बहुत अच्छे मनिंदर, बहुत वेरी गुड. मनिंदर, इसके बाद किसका था? इसके बाद कात्यायनी क्या बताएंगी?
सर आगे रिप्रेजेंटेशन, हीरोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। चलिए ठीक है, तो आप मंडे को बताइएगा। ठीक है सर। ठीक ठीक।